سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا۔ ملی کونسل کے سبھی ذمہ داران ممبران، آئیے ہم آغاز کرتے ہیں اللہ پاک کے قرآن سے، اس کی برکتوں سے یقیناً اس میٹنگ میں جو ہے اس کے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ ہمارے ساتھ نوجوان ہمارا ساتھی ہے اسد الرحمان فاروقی، جو تلاوت القرآن کریں گے انشاءاللہ، اور آپ سماعت فرمائیے، اس کے بعد میں ہم آگے میٹنگ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مولانا اسد الرحمان فاروقی صاحب نے اپنے بہت ہی بہترین انداز میں خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کی ماشاءاللہ، اور پوری محفل کو انہوں نے بابرکت بنایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو، اس تلاوت قرآن کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، یہ مخصوص میٹنگ ہم نے بہت ہی خاص میٹنگ ہے، ہم نے کسی عام کو، کسی اور لوگوں کو نہیں جوڑا ہے، ہم نے یہاں پر صرف ملی کونسل کے جو ممبران ہیں، جو فعال ممبران ہیں، ان کو جوڑا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملی کونسل کو مضبوط بنانے کے لیے ہم نے کچھ نئے ممبران کو بھی شامل کیا، جس کا اعلان ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے لیے یہ بھی ایک باعث بہت ہی برکت اور خوشی کا مقام ہے کہ آج ہمارے بیچ ممبئی شہری نہیں، مہاراشٹر نہیں، بلکہ ہندوستان کی ایک معتبر شخصیت مفتی سعید الرحمان قاسمی صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ میں، اور آج موصوف کی سرپرستی میں آج کی اس میٹنگ کا آغاز ہم نے کر دیا ہے۔ اور وہیں میں گزارش کروں گا جناب شاہد ناصری صاحب سے، جو کہ آج کی اس میٹنگ کی صدارت قبول فرمائے، آپ سب حمایت کریں۔ آپ سب کی حمایت ہے بالکل۔ تو الحمدللہ سرپرستی مفتی سعید الرحمان قاسمی صاحب کی اور صدارت مولانا شاہد ناصری صاحب کی، تو یقیناً آج کی اس ملی کونسل کی میٹنگ کے نتائج بہت ہی مثبت برآمد ہوں گے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہو کہ آخر آل انڈیا ملی کونسل ہے کیا۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ نئے ممبران بھی ہیں، کچھ ہمارے، اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سب واقف ہے، لیکن اپنا تعارف اگر پیش ہو جائے، نام اپنا پیش کریں، تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں، رابطے میں اور نزدیکیاں بڑھانے میں ہمیں بڑی آسانی ہوگی۔
सईद उर रहमान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ऐसा है कि हमारे शेख हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद उर रहमान साहब कासमी दामद बरकातहुम दारुल उलूम देवबंद के मुइनुल मुदर्रिसीन भी रह चुके हैं। वहाँ तकरीबन 5 साल आपने तदरीसी खिदमात अंजाम दी। उसके बाद 1992 में बम्बई तशरीफ़ लाए और दारुल उलूम इमदादिया के सदर मुफ्ती के मनसब पर फायज़ हैं। उसके साथ ही पूरे बम्बई उज़्मा के मुफ्ती आज़म भी हैं और अल्लाह पाक ने दर्स व तदरीस के साथ वाज़ व नसीहत का मलका भी इनायत फरमाया है और हफ्ते में 3 दिन दर्स कुरान होता है जो बहुत मशहूर है इस्लाम पूरा मस्जिद में। अब 2 दिन हो गया है और वहीं इमाम व ख़तीब भी हैं और इस वक्त दारुल उलूम इमदादिया के नायब शेखुल हदीस भी हैं। बुखारी शरीफ जिल्द सानी और तिरमिज़ी शरीफ जो हदीस शरीफ की बड़ी अहम किताब है वो पढ़ाते हैं हज़रत मौलाना। और मुझे मोहम्मद शाहिद नसरी कहते हैं। मैं आप सब लोगों का खादिम हूँ और जहाँ भी जो भी कोई बुलाता है तो हम हाज़िर होते हैं। और हमारे बुज़ुर्ग में जनाब राशिद अज़ीम साहब हैं जो सही मानों में ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल को उन्होंने बम्बई में महाराष्ट्र में नई ज़िंदगी दी है। देवबंद के रहने वाले हैं। ताजदार मंजिल बहुत मशहूर है वहाँ और यहाँ भी हम सब के वो ताजदार हैं। आज भी वो ताजदारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी वो ताजदारी करते रहेंगे। दाहिनी तरफ हमारे इंतहाई हरदिल अज़ीज़ महबूब दोस्त हैं जनाब सैयद इकबाल साहब। बहुत ही अच्छे खानवादे के चश्मो चिराग हैं। इनके चचा प्रोफेसर अब्दुल मुगनी साहब का नाम सुना होगा। उर्दू अदब में यगाने रोज़गार थे। वो मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के वाइस चांसलर रहे हैं और आपकी कोशिशों से जिसमें ये हकीर भी है जनाब मोहम्मद उवैस साहब ने सन 2007 में IAS कोचिंग क्लासेस शुरू किया हज हाउस बम्बई में। उसमें पेश हमारे सैयद इकबाल साहब रहे और उवैस साहब की ये ख्वाहिश थी जब वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई अच्छा काम हो, इतनी बड़ी इमारत है, इसका सही इस्तेमाल हो, तो आप मशवरा दीजिए क्या करना चाहिए। तो सैयद इकबाल साहब और हम लोगों ने कहा कि भाई मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी तकरीर PA इनामदार के यहाँ पुणे में जो हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम IPS मुस्लिम IAS ऑफिसर की भी ज़रूरत है, मुस्लिम एडवोकेट की भी ज़रूरत है, मुस्लिम कलेक्टर की भी ज़रूरत है। तो इसलिए मुसलमानों के लिए एक ऐसा तरबियती इदारा होना चाहिए, तालीमी इदारा, जहाँ IAS IPS की ट्रेनिंग हो और दीनी माहौल में उनकी तरबियत हो। और दूसरा मशवरा मैंने दिया कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़र है, इसका अपना एक तर्जमान होना चाहिए, तो एक रिसाला निकलना चाहिए, एक मैगज़ीन माहनामा। दोनों बात उनके समझ में आई और तकरीबन समझिए कि 15 से 20 रोज़ में उसका पहला रिसाला निकला। और इत्तफ़ाक़ यह है कि वो रबीउल अव्वल की 9 तारीख़ थी और ईसवी तारीख़ के एतबार से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत दोनों मिल रही थी सन 2007 में, दोनों ईसवी तारीख़ भी और जो चाँद की तारीख़ होती है वो भी। 15 दिन में वो पहला रिसाला निकला हज मैगज़ीन और 1 महीने के अंदर IAS कोचिंग क्लासेस सेंटर का क़याम अमल में आया। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे सैयद इकबाल साहब को। हाँ इंशाअल्लाह रहमान। और इनकी कोशिशों से पूरे हिंदुस्तान में जो हज कमेटियां हैं उन्होंने इनकी इक़्तिदा किया, इनकी इक़्तिदा में इस काम को शुरू किया। बिलखुसूस बिहार में बड़ा अच्छा काम हुआ जब हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब कासमी जो इसके नायब कौमी सदर हैं ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के, जब वो 2 टर्म चेयरमैन वहाँ रहे तो उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की और वहाँ भी माशाअल्लाह उसके बड़े अच्छे नताइज सामने आए कि तकरीबन अब तक जो दारोगा बहाल हुए हैं बिहार में वो 250 से ज़्यादा मुस्लिम दारोगा बहाल हुए हैं जिनकी तरबियत हज कमेटी बिहार ने की। हाँ, तो इस तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद कलामुद्दीन कासमी, सुबह बिहार से हमारा ताल्लुक़ है। 2005 से इसी इस्लाम जमखाने में इमामत के मनसब हूँ और 2008 से सफ़ा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिंडी बाज़ार
وہاں پہ میں تجوید کا معلم ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. شاہین پٹیل. السلام علیکم. میں شاہین پٹیل. پچھلے 5 سال سے میں راشد عظیم سر کے ساتھ میں ہوں اور آل انڈیا ملی کونسل میڈیا سیکریٹری کی ذمہ داری میں نبھا رہی ہوں. آمنا سامنا میڈیا کی ذمہ داری بھی نبھا رہی ہیں. جی آمنا سامنا میڈیا بھی. یہ ہماری بہن یہاں پر ایک ہیں. آپ ان کا خالی نام اور بس تھوڑا سا. ابھی پہلی بار میٹنگ میں شریک ہوئی ہوئی ہے. ہم نے ان کو جوائن کیا ملی کونسل میں اور دعوت دی ہے. اپنا خالی نام بتا دیجیے. جی السلام علیکم. میرا نام اسما زبیر پٹھان ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. السلام علیکم. میرا نام ایڈوکیٹ حافظ ایڈوکیٹ ابراہیم ہے. میں رہنے والا جو ہے مہاراشٹر اورنگ آباد کا ہوں. میں نے حفظ قرآن کیا ہے, اس کے بعد میں نے جو ہے لاء کی پڑھائی کی ہے. فی الحال میں جو ہے ہندوستان میں جہاں پر بھی جو ہے مسلم لڑکوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو ان کے لیے جو ہے میں کام کرتا ہوں. پچھلے 4 سال میں نے جو ہے جمعیت علماء کے لیے کام کیا. اب میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا ہے. اب میں جو ہے فری لانس جو ہے کام کرتا ہوں اور یہاں پر بمبئی میں جو ہے میری رہائش ہے, گوونڈی میں رہتا ہوں اور یہاں پر سیشنز کورٹ اور ہائی کورٹ میں کام کرتا ہوں. ماشاء اللہ. ایڈوکیٹ ابراہیم ہربٹ نے بہت اپنا مختصر تعارف پیش کیا ہے اور بہت سارے معاملات میں, بہت سارے کیسز میں انہوں نے ملت کی بہت رہنمائی کی ہے, نوجوانوں کو چھڑایا ہے اور بہت اہم کام انجام دیے ہیں اور ملت کا بہت درد رکھتے ہیں یہ اور بہت ہمدرد ہے. اور ہم نے پھر ان کو ملی کونسل کی دعوت دی کہ ملی کونسل بمبئی کمیٹی میں شامل ہو. انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا. ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. رشاد صاحب. السلام علیکم. میرا نام ارشاد ہے, ارشاد احمد شیخ, اور میں سیاسی پارٹی سے جڑا ہوا ہوں, کانگریس سے. ممبئی کانگریس میں لاسٹ 10 سال سے مائنورٹی میں وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں اور ان کا سوشل میڈیا بھی دیکھتا ہوں اور سوشل ورک میرا ہابی بھی ہے اور سوشل ورک کر کے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے. واہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ملی کونسل میں آپ کا استقبال ہے. جی بالکل. مفتی عفان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد عفان قاسمی. میں گجرات سے تعلق رکھتا ہوں لیکن تاریخی پیدائش اور تاریخ جگہ وغیرہ سے میری یہی ہے. اس کے علاوہ میں پڑھتا بھی ہوں, پڑھاتا بھی ہوں. شکریہ. سلیم شفا صاحب. ملی کونسل کے ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں ماشاءاللہ. سلیم شفا جی. السلام علیکم. اور میرا نام محمد سلیم چھپا ہے. میں راجستھان جودھ پور سے تعلق رکھتا ہوں اور ممبئی میں مہم میں رہتا ہوں. کافی عرصے سے راشد عظیم صاحب سے جڑے ہوئے ہیں. نہیں حسن شیخ صاحب جو ہے, میں بتا دوں آپ کو, ملی کونسل کے بہت ہی ابتدائی بہت رکن ہے, بہت زبردست. اور جب یہ ملی کونسل کا کانسیپٹ تھا کہ ہر ضلع اور تعلقہ میں ہمیں کمیٹیاں بنانی تھی, اس کے بعد میں ملی کونسل کی طرف سے ہمیں حکم ہوا کہ نہیں ایک چھوٹی کمیٹی بنائی جائے صرف ممبئی کی. تو حسن شیخ صاحب نے نارتھ سینٹرل میں بہت ہی مضبوط کم سے کم 50 لوگوں کو جوڑا انہوں نے, اور صرف ایک ڈسٹرکٹ میں ملی کونسل کے 50 سے 60 لوگ تھے. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ اس میں اختر شیخ صاحب بھی شامل ہیں نارتھ سے, وہاں پر اس ڈسٹرکٹ سے وکرولی, گھاٹکوپر, چیمبور, اس طرح کے سارے علاقے آتے تھے. تو حسن شیخ صاحب ہمارے بہت ہی مضبوط ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں شمیم ریحان ندوی, مدنی ہائی اسکول جوگیشوری میں ملازم. تقریباً 2015 سے میں آل انڈیا ملی کونسل میرا بھائندر یونٹ سے منسلک ہوں. میں وہاں کا جنرل سیکریٹری ہوں. میری داہنی جانب جو بیٹھی ہوئی شخصیت ہے مولانا عبدالقدوس صاحب شاکر حکیمی صاحب. یہ بمبئی میں سبھی ان سے متعارف ہیں اور بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں, جامعہ مدینۃ المعارف. وہ میرا بھائندر یونٹ کے صدر ہیں. نام تو ملی کونسل کا شروع سے ہی میں نے سنا تھا, لیکن راشد عظیم صاحب نے 2015 میں مجھے جوڑا. اس وقت سے اب تک میں ملی کونسل سے جڑا ہوا ہوں اور میرا بھائندر یونٹ میں سرگرم ہوں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. جیسے کہ ریحان صاحب نے کہا کہ میرا بھائندر ایک الگ یونٹ بنائی گئی محترم. پہلے یہ تھا کہ بمبئی, میرا بھائندر, بھیونڈی, تھانے, یہ پورا علاقہ ایک ہی اس کے ایک ہی صدر ہوا کرتے تھے. تو وہ ذمہ داری میرے پاس تھی.
میں نے مرکز سے گزارش کی کہ اتنا بڑا علاقہ میں سنبھال نہیں پاؤں گا. اکثر ہوتا ہے کہ لوگ تو سوچتے ہیں کہ بھائی میں صرف بمبئی کا ذمہ دار کیوں, بمبئی کا صدر کیوں, مجھے تو مہاراشٹر کا ہونا چاہیے, مجھے پورے ہندوستان کا ہونا چاہیے. لیکن آدمی کی جتنی کیپیسٹی اتنا ہی کام کرنا چاہیے. میں اپنے اوپر بوجھ لے لوں اور کام نہ کر پاؤں تو میں ظاہر سی بات ہے اپنی اس عہدے کے ساتھ بھی انصاف نہیں کروں گا, ملت کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر پاؤں گا میں. تو پھر انہوں نے میری اس تجویز کو مانا اور وہاں پر پھر میرا بھنجر میں ایک الگ یونٹ بنائی. نوید رضوی صاحب ہمارے بہت ہی فعال رکن ہیں. مختصر تعارف پیش کریں اپنا. مختصر سا تعارف میرا یہ ہے کہ میں راشد عظیم صاحب سے شروع سے جڑا ہوں. ملی کونسل میں ممبئی کا سیکریٹری مجھے مقرر کیے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. اور UPSC کلاس جو نیا قائم ہوا ہے بامبے میں, حج ہاؤس بند ہونے کے بعد میں جی پھر دوبارہ چالو ہوا تھا, اس کا میں بانی ہوں. شکریہ. UPSC اور IPSC کے اسٹوڈنٹ کو تیار کر رہے ہیں, بہت بڑا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اس میں انجم اسلام کے ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب کا بہت بڑا سپورٹ ہے نوید رضوی کو, اور کافی اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں. ایک شخصیت ایسی ہے ہمارے درمیان, میں چاہوں گا ان کا تعارف میں پیش کروں مختصر سے جو میں جانتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے بہت اہم ساتھی ہیں, محبت کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں, اور اس بمبئی شہر میں ایسا کون سا شخص ہے جو ان کو نہیں جانتا. وہ صحافی بھی ہے, عالم بھی ہے, دانشور بھی ہے, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے. وہ ہے مستقیم مکی صاحب, جو ایک بہت بہترین رسالہ جو برسوں سے نکال رہے ہیں, تقریباً 20 سالوں سے, ہدا ٹائمز. اتنا خوبصورت رسالہ ہم نے اب تک نہیں دیکھا بمبئی شہر میں جو مسلسل نکالا جا رہا ہو. اور مستقیم مکی صاحب کا یہ بڑکپن ہے مفتی صاحب کہ میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے, ہماری طاقت بڑھے گی, کیونکہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں. جب آپ جیسے لوگ ساتھ میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہم اور اچھے سے کام کر پائیں گے. تو مستقیم مکی صاحب جو آج ہمارے بیچ شریک ہے, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. وہ دو چلاتا ہوں میں, باقی اور کسی تنظیم میں ابھی آل انڈیا علماء بورڈ میں کسی ہمارے دوست ہیں احمد انور ندوی صاحب احمد نگر کے, انتقال کر گئے تو ان کا بیٹا ہے انصار. تو یہیں پہ انہوں نے ہم کو بنایا, کیا بولتے ہیں, علماء ونگ کا ہم کو پریزیڈنٹ بنایا. ہم نے وہ میں امان سامان میں رکھ لیا, لیکن ہم نے ان کو ٹائم نہیں لگ سکتا. جو آدمی کسی تنظیم میں لگے تو کچھ محنت کرے, اس کے لیے دعائیں کرے, اس کے لیے کوشش کرے, اس کے ترقی کے لیے محنت کرے. تو ہماری خود ایک تنظیم ہے ہدا سوشل فرنٹ ٹرسٹ, جو ATG ہے, 12 بھی ہے, سب کچھ ہے, لیگل ہے طور پہ. اور ہدا ٹائمز ہے, خدا حج ٹراولس, ابھی تینوں ادارے اکیلا چلتا ہوں. ان سبوں کو معلوم ہے میرا بیٹا نہیں ہے, سب بیٹیاں ہیں. ہمارے پرمپرا میں بیٹیوں کو ہم لوگ نوکری یا آفس میں, ہماری پرمپرا میں نہیں. اللہ کا فضل, میرے باپ بھی عالم تھے تو وہ ذرا میں خود عالم نہیں ہوں, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہ تہذیب تھوڑی باقی ہے. تو بس الگ چیز ہے, تو علماء کے ساتھ میں رہتے ہیں. تو اس لیے بھائی نے فرمایا. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں 1982 سے ہماری پہچان ہے, ڈاکٹر منظور عالم صاحب سے. تو بس بہت پہچان ہے, گھر پہ بھی گیا ہوں میں, بہت پرانی پہچان ہماری ڈاکٹر منظور عالم سے. لیکن ملی علماء اپنا آل انڈیا ملی کونسل جو ہے 82 سے جانتا ہوں, لیکن میں اس میں ملا نہیں تھا. ابھی جو سبب بنا ہے, دعوت دیا ہے ہمارا بھائی, چھوٹے بھائی راشد عظیم صاحب نے, تو میرا آنے کا یہ سبب بنے. اللہ بارک فیک, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بائیں طرف ملی کونسل کی نہیں, ملت کی ایک طاقت ہے محترمہ ایڈوکیٹ فرحانہ شاہ صاحبہ, جنہوں نے بہت بڑے بڑے کیس جو بے گناہ مسلمانوں کے کیس ہے, بم بلاسٹ کے ہوں یا اور دیگر کیس ہو, انہوں نے مسلسل لڑا ہے اور بہت قوم کی بہت مدد کی ہے, نوجوانوں کی بہت مدد کی ہے. اور اب میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا اپنی زبان سے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ہم ایڈوکیٹ فرحانہ شاہ ہیں, میں بامبے ہائی کورٹ, سیشنز کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی حاضری ہو چکی ہے میری بلاسٹ کے کیس میں. آئی ایم ان پریکٹس سنس لاسٹ 32 ایئرس. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام کروائے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, بس اللہ کے فضل و کرم سے سارے کام کیے ہیں. تو قوم کی خدمت کرنے کی تھوڑی جذبہ ہے, اس کی وجہ سے سب کام ہو رہے ہیں. اور ملی کونسل سے بھی ہم جڑے کیونکہ 93 کے بلاسٹ کے میٹر میں ملی کونسل نے بہت سپورٹ کیا تھا اس وقت. تو جبھی شہاب الدین بھائی تھے اور ہارون مرزا والا صاحب تھے, تو وہ ان سے ہمارا بہت اچھا رابطہ تھا. تو الحمدللہ اس وقت سے ہم کام کر رہے ہیں. بعد میں پھر کچھ وقت کے لیے ملی کونسل کا نام و نشان تھوڑا
जी हाँ, कुछ गलत हाथों में चली गई थी असल में। और फिर अभी फिर से जुड़ गए हम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग कौम के लिए और हमारे काउंसिल जो है, जैसे कौम की खिदमत पहले करे हैं वो इंशाल्लाह अब भी करें। बिकॉज़ कौम में बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनको बहुत सारी नॉलेज नहीं है, लीगल नॉलेज बहुत कम है आजकल। इनफैक्ट अभी तो बहुत सारी लड़कियां भी LLB वगैरह कर रही है, प्रैक्टिस में आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारा जो जैसे हम लोग देखते हैं स्लम एरिया वगैरह, वहाँ पे अभी भी कुछ लोगों को बहुत सारी नॉलेज नहीं है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज़। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग उन लोगों को कोई ऐसा मिलकर काम करे, उनको भी जाहिर है मालूमात हो कि उनके राइट्स क्या है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और आगे तो अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है, जो अल्लाह की मसलियत होगी इंशाल्लाह वो काम होगा। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रन। हमारे दरमियान जो है सिराज शेख साहब हैं, माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं और मिल्लत का बहुत जज्बा रखते हैं। बहुत सारी जो मुल्की सतह पे जो शख्सियात उनके साथ में जो उलमाए कराम है उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और कारोबार में उनका ये है कि जो आप अक्सर साइन बोर्ड वगैरह जो एक्रिलिक के देखते हैं, अजय सेल्स है, ओप्पो है, इस तरह के जो साइन बोर्ड बड़े बड़े होते हैं डिजिटल, उनकी अच्छी फैक्ट्री है इनकी, सिराज साहब की, और मिल्ली कौंसिल से बहुत करीबी ताल्लुक इनका है। मैं चाहूँगा आप भी थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन मणिपुर से है, मुंबई में 24 साल से सेटल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हजरत ने बताया कि 24 साल से एक छोटा सा बिजनेस है एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। इन जैसे कौम की, लेकिन मुसलमानों की जैसे तरह से जो मैं खिदमत करना चाहता हूँ, कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, इसी से बस अल्लाह ने जुड़वा दिया है मिली काउंसिल के साथ में और रशीद अजीम साहब के साथ में मिल करके जो है इस तरह के थोड़ा सा काम करने का जो मौका मिला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आगे भी मुझे जो है ऐसा खिदमत करने का मौका आप लोगों के साथ के ज़रिए से मिलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज साहब। एक बार फिर मैं आप सभी का जो अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर मौजूद है वो तशरीफ़ लाए मेरे साथ में, और भी हमारे अहमद कादरी साहब है, सुलेमान सूरिया साहब है, इस बम्बई शहर के बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी है, सियासत से भी जुड़े हुए हैं। आइए आप कुछ कहना चाहेंगे तो माइक से कह सकते हैं। सुलेमान सूरिया साहब। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सुलेमान अली मोहम्मद सूरिया है। मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ मैं। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मुंबा देवी में रहता हूँ। अमीन पटेल साहब MLA हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी में सियासी कामों के अंदर, समाजी कामों के अंदर हम जुड़े हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम। मैं मोहम्मद अहमद कादरी मोहम्मद अली रोड पे रहता हूँ और साउथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट में जनरल सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस पार्टी का। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ाते हैं इस मीटिंग की कार्रवाई को आगाज़ करते हैं। असल जो हम जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं, तारुफ सबका हो गया। थोड़ा सा तारुफ में लंबा हुआ तारुफ, ऐसा मुझे लगता है, शायद मैंने आप लोगों का वक्त तो ज़ाय नहीं किया। देखिए, मैं अगर अगराज मकासद की बात करूँ मिली कौंसिल की, कि जो कि आज भी बहुत से लोगों को पता नहीं कि इसके मकासद क्या हैं, तो कुछ नए लोग जुड़े हैं, उनको पता होना चाहिए कि मकसद क्या है। मेरे सामने ये ऑल इंडिया मिली कौंसिल का एक छोटी सी किताब है, बुक है, जो कि हमारे जो दस्तूर जो है मिली कौंसिल का, किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम होना चाहिए, क्यों बनाई गई मिली कौंसिल। मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि मिली कौंसिल को क़याम जो इसका हुआ वो 1992 के बाद हुआ गालिबन, जब मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे, बहुत ही खौफ का माहौल था मुसलमानों में और यहाँ तक कि तंजीमों में भी। जिस तरह से मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा था, उन पर जुल्म ढाया जा रहा था। फरहान शाह साहिबा बहुत उसको करीब से देखती हैं, उन्होंने जाना है। उस वक्त हमारी मुल्क की जो बड़ी तंजीमें थी वो खामोश हो गई थी। एक डर था कि अगर हमने कुछ कहा तो हम पर भी कुछ मामले बन जाएंगे। एक खौफ का माहौल, कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था। मैं उन तंजीमों का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन क्योंकि हालात वैसे थे, सभी डरे हुए थे, तो इस मौके पे मुल्क की नामवर शख्सियत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब ने चंद हौसलामंद अफराद को इकट्ठा किया, उनसे बात की कि ये कब तक चलेगा, कैसे होगा,
हम अगर मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हमें आगे आना होगा और मुसलमानों को खौफ के माहौल से बाहर निकालना होगा। उस वक्त ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल की बुनियाद पड़ी और मुल्क के अलग अलग इलाकों से बहुत ही ताकतवर लोगों को इसमें इकट्ठा किया। उसमें सभी तंजीम, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो या और दीगर मजलिस मुशावरत हो। तो मैं यही आप सभी के सामने अर्ज कर रहा था कि क्यों बनाई गई मिलिट्री काउंसिल की बुनियाद कैसे पड़ी। वो हालात थे और उन हालात में सभी को जोड़ के मिलिट्री काउंसिल को बनाया गया। और उस वक्त सबसे पहले जब आपने देखा कि काला कानून टाडा को लाया गया और उसका असर मुसलमानों में बहुत हुआ। टाडा के तहत बहुत सारे हजारों मुसलमान गिरफ्तार हुए और दीगर कौमों के भी, दलित और मुसलमान, लेकिन तादाद मुसलमानों की ज़्यादा थी। बहुत उसका मिसयूज़ हुआ। मैं चाहूँगा कि फरहाना शाह साहबा इस पर ज़्यादा गौर से रोशनी डाले मेरे बाद में कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जब टाडा का मिसयूज़ होने लगा तो मिलिट्री काउंसिल ने कन्वेंशन लिया दिल्ली में और उसमें सभी बिरादरान वतन को भी बुलाया और मुल्क के जो बड़े बड़े सियासी ताकतवर लोग हैं उनको भी बुलाया गया, समाजी लोगों को बुलाया गया और दूसरी तंजीमों के लोगों को जोड़ा गया। और वहाँ पर यह ऐलान किया गया कि ये टाडा का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है इसको बंद किया जाए। और उसके बाद में ये हुआ कि काफ़ी कोशिशों के बाद में टाडा के खिलाफ जो है पूरे मुल्क में माहौल बना इस काले कानून के खिलाफ और वो कानून वापस लिया गया। एक और बात, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो हिंदुस्तान के जो हमारे मदारिस हैं उन पर कुछ फिरका परस्त ताकतों ने, कुछ भगवा परिवार के लोगों ने उस पर बेजा इल्ज़ामात लगाए कि ये यहाँ पर दहशतगर्दी की क्लासें होती है, यहाँ दहशतगर्दी का दर्ज दिया जाता है। इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की। मिलिट्री काउंसिल ने मदारिस बोर्ड बनाकर सभी को इकट्ठा किया, सरकार से बात की, उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की गई। तब उस वक्त के वजीर दाखिला ये एल.के. अडवाणी साहब ने ये कहा कि मदारिस जो है वो तालीम का देने का काम कर रहे हैं, वहाँ तालीम होती है सिर्फ, वहाँ इनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं मदारिस का। ये एल.के. अडवाणी साहब ने कहा था। आज आवाज़ें उठ रही है वो अलग बात है, आज के माहौल से हम सब वाकिफ है, उस पर हम बात नहीं करना चाहते क्योंकि आज का हमारे यहाँ मौजू भी नहीं है। उसके बाद में आपने देखा होगा पोटा आए और बहुत सारे ऐसे कानून आए। फिर हालिया मॉब लिंचिंग को लेकर मिलिट्री काउंसिल ने आवाज़ उठाई सब कुछ, और यूपी और दूसरे तालीम को लेकर मिलिट्री काउंसिल ने एक मिशन तैयार किया 2050 तक का कि भाई सबके घर में मुसलमानों को आला तालीम से नवाजा जाए और तालीम आम की जाए। इस तरह का मिशन मिलिट्री काउंसिल का जारी है। मैं यहाँ पर अपनी बात न रखते हुए जो मिलिट्री काउंसिल ने बात कही है, एक कुछ मुख्तसर सी है वो, मैं इसको पढ़कर अपनी बात ख़त्म करूँगा। मिलिट्री काउंसिल नंबर 1, कलमा तैयबा की बुनियाद पर मुसलमानों में इज्तिमाइयत और इत्तेहाद पैदा करना, इस बात की कोशिश करना कि मुसलमान बहैसियत खैर उम्मत इस मुल्क में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सके। कलमा तैयबा की बुनियाद पर मतलब कि आपने देखा होगा कि मुल्क में बहुत सारी तंजीमें हैं, काम भी बड़ा कर रही हैं, लेकिन उनकी जो थोड़ी सी सोच जो है वो थोड़ी सी मिलिट्री काउंसिल से बिल्कुल अलग है। आप ये देखेंगे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन जमातों का, उनके अपने ही जिम्मेदार, उन्हीं का मसलक, उनके मानने वाले लोग, उनकी सोच रखने वाले लोग, लेकिन ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल का दायरा बहुत वसी है। ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल में सुन्नी भी है, देवबंदी भी है, अहले हदीस भी है और जितने तबकात हैं मुसलमानों के सभी के लिए जगह है एक कलमे की बुनियाद पर। कौमी इत्तेहाद, मिली इत्तेहाद, और उसके साथ साथ मुसलमानों के इत्तेहाद के साथ साथ ये भी कोशिश मिलिट्री काउंसिल ने हमेशा की है अपने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन में कि इस मुल्क के दिगर तबकात के बड़े बड़े लोगों को बुलाना, साधु संतों को बुलाना और उनके लीडरान को बुलाना, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, उनके साथ में भी कौमी यकजहती का मुजाहरा करना। जो नफरत फैलाने का जिस तरह से काम किया जा रहा है मुल्क के अंदर, उस नफरत को कम करने की, ख़त्म करने की कोशिश भी मिलिट्री काउंसिल लगातार करती चली आ रही है। एक चीज़ और, सच्चर कमेटी, जब हमारे मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे,
उन्होंने 2009 में ये कोशिश की कि मुसलमानों की हालत ज़ाहिर क्या इस मुल्क के अंदर, तो उन्होंने एक सच्चर कमेटी कायम की। तो सच्चर कमीशन जो है जब बनाना की जब वो प्रोसेस चल रहा था, तो मिली काउंसिल ने राब्ता कायम किया और कांग्रेस ने भी मिली काउंसिल से राब्ता कायम किया। उस वक्त डॉक्टर मंजूर आलम साहब ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर का नाम पेश किया कि इनको इस कमीशन का, इस जो आप कमेटी बनाना चाहते हो उसका रहबरी की जाए, चेयरपर्सन बनाएगा जी। और सच्चर, डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की रहनुमाई में पूरे मुल्क भर में जो है सर्वे हुआ और ये बताया गया कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज़्यादा ख़राब है, उस पर अमल नहीं हुआ या कितना हुआ ये दीगर मौजूद है। तो मिली काउंसिल का इसमें भी बहुत बड़ा रोल है। मिली काउंसिल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो है सरकार ने मसौदा पेश किया कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा या कॉमन हमारा कानून होगा। उस पर मिली काउंसिल ने भी एक मसौदा तैयार किया यूनिफॉर्म सिविल कोड का कि मुसलमानों को ये जो है मंजूर है, आपका मसौदा उसमें कितनी गलतियां हैं, जो भी बुराई है उसको निकाल कर कि भाई नहीं ये गलत है ये सही है, और अपना एक मसौदा पेश किया कि मुसलमान इसको तस्लीम करेंगे क्या और हम इसको मानते हैं। ये एक बड़ा काम मिली काउंसिल का। उसके अलावा तलाक बिल, ट्रिपल तलाक बिल को लेकर मिली काउंसिल ने, हम लोगों ने भी यहाँ पर जो दस्तखती मुहिम शुरू हुई, हसन शेख साहब, अख्तर साहब और सारे हमारे जितने साथी है, कम से कम मुफ्ती साहब, हम लोगों ने यहाँ से 50,000 लोगों के दस्तखत वहाँ मरकज़ को भेजे, मरकज़ ने भी उसके बाद में उसको आगे बढ़ाया। तो इस पर बहुत बड़ा बॉम्बे कमेटी ने बहुत रोल अदा किया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं कि मिली काउंसिल हिंदुस्तानी मुसलमानों की जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए मुनासिब तदाबीर इख्तियार करना, मुसलमानों के दीनी व मजहबी तशख़्ख़ुस व नेज़ तहजीब और सकाफती शरास्त के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करना, और इस सिलसिले में इन मकासद के लिए की जाने वाली कोशिशों में खा वो किसी जहज से हो रही हो रब्त तौफीक पैदा करना, उनसे ताउन करना, चाहे कोई भी काम करे हम उनके साथ में जाने को तैयार है, राब्ता करने को तैयार है। जहाँ मुसलमानों के मजहबी तशख़्ख़ुस की बात आती है तो लड़ाई लड़ने को हम साथ में तैयार है। और बहुत सारे ऐसे, मैं ये चाहूँगा कि मैं इसको ज़्यादा तवील ना करते हुए इसकी हम एक कॉपी आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। अभी फरहाना शाह साहिबा ने मुझे मशवरा दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, तो इसका हम PDF आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज देंगे, तो आप लोग इसको पढ़ें और समझें कि मिली काउंसिल क्या है। क्योंकि अगर मैं बहुत लंबी बात करूँगा तो बातें तो बहुत सारी है, कई घंटे निकल जाएंगे इसमें, तो वक्त ज़ाया न करते हुए बस मुख्तसर ये बता दूं कि मिली काउंसिल ने हाल ही में इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस ली थी, जहां पर मुसलमानों के बहुत ही जिम्मेदार शख्सियात थी, साथ ही साथ हमारे बिरादरान वतन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। इसमें हिंदू भी थे और सिख भाई भी थे, उसमें दलित कौम से भी थे, पिछड़े समाज के लोग भी थे, सभी लोग उसमें शरीक हुए थे। मिली काउंसिल ने एक अभी हालिया, आपने डॉक्टर कफील खान का नाम सुना होगा कि बम्बई शहर में कफील खान की किताब की इजरा की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था कि हम कैसे इजरा करें इसका। तो शाहीन पटेल, हम और बाकी और दोस्त हमारे सारे लोग जो है तय किया कि यहाँ पर मराठी पत्रकार संघ में होगा। हमने लोगों को दावत दी, मदऊ किया, कफील खान को हमने एयरपोर्ट से रिसीव किया। एयरपोर्ट पे जब हमने रिसीव किया तो हमारे पीछे वहीं से कुछ जासूस लग गए थे, और जिस वक्त ये एयरपोर्ट पे कफील खान पहुंचे हैं तो यूपी में उनके घर पे जो है ना पुलिस ने घेराव कर दिया था। कफील खान हमारे गले रख के रोए कि राशिद भाई ये हालत है, आज मेरे घर को पुलिस ने घेर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मिली काउंसिल ने पूरी ताकत के साथ में, पूरी कुव्वत के साथ में उस किताब को यहाँ लॉन्च किया और एक उन पर फिल्म भी बनाई, जो फिल्म दूर तक पहुंची। और किताब को लॉन्चिंग को लेकर जो यहाँ पर बहुत अच्छा माशाल्लाह रिस्पॉन्स रहा। और ये भी काम हमने किया सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और खुदा के खौफ के साथ में कि एक डॉक्टर के साथ में किस तरह से जुल्म हुआ था, नाइंसाफ़ी हुई थी, उस नाइंसाफ़ी को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं बहुत बात आगे ना बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा शाहिद नासिर साहब से पहले मैं मोहतरमा फरहाना शाह साहब से चाहूँगा कि वो हालात बयान करें, मुख्तसर जो हालात गुजरे हैं। शुक्रिया दोस्तों। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बस मैं इतना कहूँगी कि 1993 के ब्लास्ट केस में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था। उस वक्त हालात तो बहुत ख़राब थे, लोग रिप्रेजेंट करने के लिए भी बहुत कतराते थे और पुलिस वालों का तो ऐसा कहर था कि बस
कोई अगर उनको सपोर्ट करने भी जाए या रिप्रेजेंट करने भी जाए तो सारी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती थी उनके ऊपर। खैर अल्लाह ताला के करम से कुछ लोगों ने हिम्मत की, हम लोग अटेंड करने लगे। फिर काफ़ी लोग एक्यूज़ थे, उसमें मोर देन 200 पीपल थे। कुछ लोगों का डिस्चार्ज हुआ। हम लोगों ने अपनी तरफ से मेहनत की। उस वक्त शहाबुद्दीन भाई और हारून मूसावाला साहब थे, तो उन लोगों ने हमारे से राब्ता कायम किया था। फिर हमारा एक पैनल बना था एडवोकेट्स का, और डिस्चार्ज एप्लीकेशन वगैरह हम लोगों ने सब आर्ग्यूमेंट्स किए थे। उस वक्त हारून मूसावाला साहब मिली काउंसिल के सदर थे उस वक्त बॉम्बे के, है ना? जी। तो उस वक्त फिर एडवोकेट नितिन प्रधान और हमारा पूरा टीम थी, तो हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स करा था और 26 लोगों का डिस्चार्ज हुआ था उस वक्त। उसके बाद केस चला, फिर 14 साल वो केस चला। 2007 में उसका जजमेंट आया। उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी, यानी एडवोकेट्स अगर आप बोलिए तो जजमेंट पढ़ने के सिर्फ 5 लाख रुपए जमा करवाइए, फिर जजमेंट पढ़ेंगे और फिर आगे मैटर चलेगा, ऐसे कुछ लोगों का डिमांड था। और सिंस हमने उस मैटर में 93 से हम डे 1 से थे, तो हमारे जो एक्यूज़ थे करीबन 12 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। उसमें 11 लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे और एक एक्यूज़ की तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील डेथ हो चुकी थी। फिर 10 लोगों का केस हमने फाइट किया सुप्रीम कोर्ट में। तो उन लोगों ने सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही छोड़ी थी कि आप तो जानते हैं सब हमारे बारे में, तो आप ही हमारे लिए बोलिए। कुछ नहीं होगा, हमको आप पर भरोसा है, जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। बिकॉज इतने पैसे किसी के पास भी नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इतनी ताकत लगाएं और खर्चा करें और केस चलाएं। तो हमने फिर उन लोगों की अपील चलवाई। अल्लाह ताला का करम रहा कि डेथ सेंटेंस कम्यूट होके लाइफ हो गई वो 10 लोगों की, और बाकी लोगों को भी बहुत सारी रिलीफ मिली अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अभी इतने साल हो गए, अभी हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि 30-30 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए, तो अभी भी काफ़ी लोग जो है वो जेल में है। तो अभी मेरी उनसे बात हो रही थी कि हम लोग कोशिश करेंगे, बिकॉज इन बिटवीन कुछ लोगों को फर्लो और पैरोल मिलता था तो आते थे, लेकिन जो डेथ सेंटेंस वाले थे जिनको लाइफ सेंटेंस हुई है उन लोगों की हालत तो आज भी वैसी है। बिकॉज काफ़ी लोग हैं जो उस वक्त से जो जेल में है ना, वो अब तक वो एक बार भी बाहर नहीं आए फर्लो और पैरोल पे, यानी सिंस 30 इयर्स दे आर इन प्रिजन। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उनके लिए कुछ रेमिशन के लिए फ़ाइल करें, उनका सेंटेंस कम्यूट हो जाए। बिकॉज रेमिशन का जो है वो ऐसा है कि 12 साल के बाद लिखान जाता है जेल से, और फिर बाद में वो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है गैजेट के ज़रिए कि उनको कितनी सज़ा लगानी है। तो हमारे कुछ एक्यूज़ थे जिन्होंने वो पहले ही फाइल कर दिए और उनके लिए 60 इयर्स का लिख के आ गया, जो हम लोगों के लिए एक हर्डल बन गया है। खैर एनीवे हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, हालांकि वो भी परेशान है तो कुछ ना कुछ वो भी हाथ पैर मारते रहते हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, और अगर आप लोगों का सबका साथ रहा तो इंशाल्लाह उनके लिए काम करेंगे। बिकॉज़ ये बॉम्बे हाई कोर्ट में तो सवाल ही नहीं उठता है कि होगा, बिकॉज़ ताड़ा के मैटर में अपील भी जो है वो हम लोगों का कन्विक्शन लगने के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही गई। बॉम्बे हाई कोर्ट में कोई रिलीफ नहीं मिला। तो अभी रेमिशन के लिए भी यही है कि हम लोगों को इंशाल्लाह जो भी रिलीफ मिलेगी वो सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर फाइल करना चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के अलावा खर्च भी उतना ही है। तो मतलब ताकत जैसी जिसकी है, वो काफ़ी लोग आज भी इतने सालों से अंदर है तो कौन उनकी मदद करेगा, उनके घर वाले खुद परेशान हैं क्या। हाँ, बहुत सारे लोग तो मैं आपको अगर बयान करूँगी तो पूरी रात भी काफ़ी नहीं है पूरा सिचुएशन बताने के लिए कि कैसे हालात हैं। खैर अल्लाह ताला ने वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा दिए। इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनको कुछ रिलीफ अब भी दिला सकें, और आप सबकी दुआएं और आपका साथ ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आप लोग करें तो बेहतर होगा। और जहाँ तक ताड़ा एक्ट का सवाल है, तो बिकॉज ऑफ मिसयूज़ 1995 में वो लैप्स होने वाला था। तो उस वक्त काफ़ी लोग थे जो दिल्ली जाके भी मिले, जैसे एडवोकेट मजीद मेमन और दूसरे लोग थे।
تو وہ جا کے ملے اور پھر ان لوگوں نے اپنی محنت سے کیے تو الحمدللہ وہ آگے ایکسٹینڈ نہیں ہوا اور 23 مئی 1995 کو وہ لیپس ہو گیا. تو اس کے بعد سے تاڑا نہیں آیا. لیکن آج بھی جیسے بلاسٹ کے میٹر میں بہت سارے ایکیوز ہے جو ایبسکانڈنگ ہے اور ابھی پکڑے جاتے تو بیکاز آف سیونگ کلاز, بیکاز تاڑا میں ایک سیکشن 1 سب سیکشن 4 ہے جو سیونگ کلاز ہے, جس کی وجہ سے جو ایکیوز اس وقت نام لیے گئے ہیں اور لسٹ آف ایکیوز میں ہیں, ایبسکانڈنگ ایکیوز ہیں, ان کے خلاف تو وہ کیس چلنا ہی چلنا ہے بیکاز آف دا سیونگ کلاز. تو اس سے ہم لوگ پرے نہیں جا سکتے, بٹ اللہ تعالیٰ اس میں بھی کچھ راستہ بنائیں گے. تو انشاءاللہ 2 ٹرائل تو ہو چکی ہے. ایک کا ججمنٹ 2006-2007 میں آیا جو کودے صاحب نے پاس کیا تھا. اس کے بعد جو 7 لوگ تھے, ریاض صدیقی, ابو سالم وغیرہ, ان کا ججمنٹ 2015 میں آیا اور 2017 میں آیا. اور پھر ابھی کچھ لوگ ہیں, ابھی بھی 7 لوگ ہیں جو کسٹڈی میں, 6 لوگ ہیں, 7 لوگ ہیں ابھی بھی جو ایبسکانڈنگ تھے اور آ گئے ہیں. ان میں سے ابھی بھی 7 لوگ ہیں جن کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کا کیس چل رہا ہے. تو ابھی یہ 3rd فیز ہوگا ہمارا تاڑا کے میٹر کا. تو انشاءاللہ بس, اور ہم آج بھی جڑے ہیں, اس وقت سے لے کے آج تک بھی جڑے ہیں, اور جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور آپ سب کی دعائیں کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. آپ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول کرے, آپ کو صحت مند رکھے اور آپ کو بہت اللہ تعالیٰ اچھا رکھے, ہماری سب کی دعائیں ہیں. اور دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بہتر تعداد یہاں پر ہے, کیونکہ اگر ہم عام شاید ہو سکتا بلاتے, کیونکہ ہم نے میسج جن لوگوں کو دیا تھا وہی لوگ یہاں پر شریک ہے. ہم نے میسج کو عام بھی نہیں کیا تھا, اگر عام کرتے تو شاید یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. میں ایک بار پھر آپ کو شکریہ ادا کروں گا, یہ گزارش کروں گا کہ ملی کونسل کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کی طاقت کی ضرورت ہے. ہمیں ایکٹیو ہونا ہے. کیوں ہونا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. ہمیں یہ مقصد نہیں ہمارا کہ ہمارا فوٹو آ جائے, ہم تقریریں کریں. آپ میں جو صلاحیتیں ہیں, آج میں یہاں پر صدر کی کرسی بیٹھا ہوں, اگر آپ لوگ آگے آئیں گے, کیونکہ میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا, مجھے 1 2 3 پتہ نہیں کب جانا ہوگا. تو ہمیں کیڈر میں سے ہی نئے ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہوگا کہ جو آ کر اس جگہوں کو سنبھالے. کیونکہ یہ مسلسل دیکھیں, کچھ لوگ ہمارے ساتھ میں پہلے تھے, وہ آج کہیں مصروف ہو گئے, کوئی بیمار ہو گیا. تو یہ جو ایک پروسیس چلتا رہتا ہے, یہ نظام ہے, یہ اس نظام کو ہمیں قائم رکھنا ہے. اور آپ لوگوں کو بالکل, اب ہم جڑے ہیں, یہاں سے ہماری جو شروعات ہوگی انشاءاللہ ہم رکنے والے نہیں ہیں. یہ آپ کو عہد کر کے اٹھنا ہے. اور ایک چیز اور کہ آپا نے مجھے کہا کہ واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں, تو واٹس ایپ گروپ بنائیں گے اور اس میں یہ رہے گا کہ اس میں یہاں کی پوسٹ نہ ڈالیں آپ. جیسے عام طور سے فضول کی پوسٹ ہے, السلام علیکم وعلیکم السلام, سلام تو ہم ملیں گے انشاءاللہ کرتے رہیں گے, سمجھے کیا. اور یہ برتھ ڈے تو بالکل سالگرہ برتھ ڈے کچھ بھی نہیں, کوئی نہیں, صرف ملی کونسل کے اغراض و مقاصد کو لے کر بات ہوگی. اور وہاں پر جو بھی وہ پوسٹ دیکھے گا اس کو بعد میں رپلائی کرنا ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا, آپ کیا سوچتے ہیں, کم سے پتہ چلے کہ ہاں بھائی اوکے یہ سب جاگرت لوگ ہیں, زندہ لوگ ہیں یہ لوگ. تو وہاں اگر گروپ بنتا ہے تو اس کو آپ ایکٹیو رکھیے اور اپنے مشوروں سے بھی نوازیے. کوئی میسج ایسا آپ تک پہنچتا ہے میٹنگ کا تو آپ رپلائی کیجئے کہ ہاں آپ نے دیکھ لیا ہے, آپ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, کہ آپ کی موجودگی کا احساس ہمیں ہوتا رہے اور ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے. اب یہاں پر جتنے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ہیں ملی کونسل کے, ریحان صاحب بھی ہے, قدوس شاہ کے حکیمی صاحب بھی ہے, مستقیم مکی صاحب بھی ہے, اور لوگ بھی ہے. میں چاہوں گا کہ سبھی لوگ تھوڑا تھوڑا کچھ بولیں, لیکن میری خواہش یہ ہے اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو کچھ ہماری ذہن سازی ہو جائے. ہمارے بیچ ایسی شخصیت ہے مفتی سعید الرحمان صاحب, کہ اپنی بات کو رکھیں گے تو یقیناً ہمارا بھی کچھ سوچنے کا جو دائرہ جو ہے وسیع ہوگا, ہمیں بھی کچھ بولنے کا موقع ملے گا, سمجھنے کا موقع ملے گا. تو میں چاہوں گا اس کے بعد میں آپ لوگ اپنا 3 منٹ 4 منٹ جو بھی وقفہ ہے اس پہ آپ بات کریں. میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان قاسمی صاحب سے, وہ آئے اپنی بات کو رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وتعاونوا على البر والتقوى وقال سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم دوستو,
मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह पाक काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी खिदमात को और उनके इखलास को कबूल फरमाए। मैं याद रखता हूँ कि उन्होंने इस दर्द को महसूस किया और कुरान करीम की इस आयत का सही मफ़हूम मुतय्यन किया, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, दुनिया में जितने कलमा पढ़ने वाले हैं सब एक हैं, एक दूसरे के भाई हैं। कुरान करीम सूरह हुजरात में। तो जो कलमा पढ़ने वाले हैं, ज़हनी फ़िक्री इख्तिलाफ और बहुत से मसालिक का इख्तिलाफ होने के बावजूद कलमे की बुनियाद पर सब के सब भाई भाई हैं। जब भाई भाई हैं तो कुरान करीम कहता है फ़ास्लिहू बैना अख़वैकुम, लिहाजा तुम जब भाई ठहरे तो एक भाई को दूसरे भाई की खैर खाही करनी चाहिए। और ख़ुसूसन खैर खाही उस सूरत में और बढ़ जाती है जबकि भाई किसी खाई में हो, किसी मजलूमियत में हो, किसी उलझन में हो, किसी मुश्किल में हो। अल्लाह फ़लस्तीनियों की मुश्किलों को आसान फरमाए। हम सब उनकी खैर खाही में और उनके लिए दुआगो हैं और हर मुमकिन कोशिश जो हमारे लिए कानूनी दायरे में होगी इंशाअल्लाह हमें वो भी करनी है। ये हमारा, क्योंकि कुरान करीम पूरी दुनिया के लिए है और हर इंसान के लिए। जो अहले ईमान है उनका फ़र्ज़ ये है इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फ़ास्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने भाई की खैर खाही करो और उसकी मुश्किलात में उसके काम आओ। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और जो भी ये काम तुम करो अपने भाई के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए करो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तुम पे नाजिल होने लगे। तो गोया अल्लाह की रहमत पाने के लिए सबसे बड़ा ज़रिया ये है कि मुसलमान का खैर खा हो, बदखा न हो, नफरत न पैदा करता हो, इख्तिलाफ और इंतशार न करता हो, तो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनेगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुआशरती निज़ाम को, ये बहुत बड़ा पैगाम है पूरी दुनिया के मुसलमानों को और हर जगह के मुसलमानों के मुआशरती निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, हमेशा अच्छे काम पे, नेकी के काम पे, तकवा के काम पे, अल्लाह के रज़ा के काम पे एक दूसरे की मदद करो। ये फ़र्ज़ है तुम्हारे में। ये हम सब अगर इस काम को करें तो इंशाअल्लाह बदी खुद ब खुद मिट जाएगी और जितनी बुराइयां और जुल्म और मज़ालिम ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें आपस में अपना इत्तिहाद इत्तिफाक, भाई की खैर खाही, ताउन अलल बिर्रि वत्तक़वा। और मेरे दोस्तों, बात लंबी करने का मौका नहीं, आप काफ़ी देर से बैठे हैं, एक आखिरी बात सुनाता हूँ। हम सब के सब अल्लाह की मदद के मोहताज हैं और हर कदम पे मोहताज हैं और हमें हर मामले में अल्लाह की नुसरत और मदद की ज़रूरत है। अल्लाह हमारी नुसरत फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ज़ाब्ता मुकर्रर करे। तुम नुसरत अल्लाह की चाहते हो, तुम्हें अल्लाह की मदद चाहिए, मुसलमानों को अल्लाह की मदद चाहिए, तो कान अल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखीह, तुम अपने भाई की मदद में लग जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद में लग जाएगा। तुम किसी मजलूम के काम आ जाओ, अल्लाह तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ में आ जाएंगे। अल्लाह हम सबको वाकई ये सच्चा जज्बा और ये मुखलिसाना जज्बा नसीब फरमा दे, तो इंशाअल्लाह दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा। इसलिए मिली काउंसिल के प्लेटफार्म से हम सबको वही फिक्र दुनिया में फिर से पैदा करनी, बेदार करनी है कि हम भाई भाई हैं और भाई भाई का खैर खा होता है, उससे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह हमारे इस जज्बे को कायम रखे और हमें कामयाबी दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खैर, माशाल्लाह बहुत मुख्तसर अंदाज में, मुख्तसर वक्त में आपने बहुत बेहतरीन बातें की माशाल्लाह। हम तो चाहते थे कि और सुनते रहे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा जो है हम सब में कूट कूट के भर जाए कि हम जो है अगर हमारे भाई को किसी को तकलीफ़ होती है तो वो तकलीफ़ हमें भी होनी चाहिए। और इसी दर्द को लेके हम यहाँ बैठे हैं और इंशाल्लाह फिर जब भी ऐसा मौका आएगा बैठते रहेंगे और मशवरे करते रहेंगे और कुछ अमली इक़दाम भी हम करेंगे, कदम भी उठाएंगे इंशाल्लाह, बशर्ते कि हम सब जो है मजबूती के साथ भी जुड़े रहें और हमें लोगों को जोड़ना भी है। ख़ास तौर से मैं फरहाना शाह साहबा से कहूँगा कि ख़वातीन का एक बहुत अहम रोल आज के इस वक्त में है। जब हम देखते हैं कि जब ट्रिपल तलाक की बात आई, जब NRC CA की बात आई, तो हमारी बहनों ने निकल के पूरे हिंदुस्तान में बता दिया कि उनकी ताकत क्या है। क्या हमें जब हम दस्तखती मुहिम
जब हमने जारी की तो हमें लगा कि हमारे साथ में हमारी बहनें भी होती, उनकी ताकत और होती, तो हम घर घर जाके हमारी बहनें लोगों से दस्तखत देती है NRC CA के मामलों को भी। आगे आने वाले दिनों में हमें यकीनन ख़वातीन की एक ताकत की ज़रूरत है आपा। तो मैं चाहूँगा कि आप भी जोड़े, हमारी बहन वहाँ बैठी वो भी जोड़े, शाहीन पटेल भी और ख़वातीन को जोड़े, और इससे एक मजबूत आप लोगों की टीम बन जाए, जो ख़वातीन की विंग बन जाए। आइए अब दोस्तों, मैं चाहूँगा कि हमारे बीच इब्राहिम हरबट साहब, एडवोकेट इब्राहिम हरबट, जिन्होंने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा और बॉम्बे कमेटी में हम शामिल कर रहे हैं, उनको आपका वेलकम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका और राशिद अजीम साहब का जो शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे दावत दी, और जो है अल्लाह मुझसे काम ले ले। हालात बहुत ख़राब हैं, 93 से ख़राब हैं, हिंदुस्तान में चल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो क़ानून बनाए गए हैं UAPA और MCOC जैसे क़ानून, और जिसका इस्तेमाल मुसलमानों पे किया जा रहा है, और ऐसे मुसलमानों पे ख़ास तौर पे जो मिल्लत का दर्द रखते हैं। अगर आप मिल्लत का दर्द रखते हैं तो आपको क़ुरबानी देनी होगी, और अगर आपके अंदर क़ुरबानी का जज्बा है तभी आप इस कौम के लिए काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि रिसेंटली हुआ है, मेरे एक दोस्त हैं, वो जो है कई साल इस जो है मुल्क की जो है जेल में काट के वो आए हैं, और रिसेंटली जो है उन्होंने एक किताब भी लिखी, 2 किताबें उन्होंने लिखी, एक अपनी आप बीती लिखी उन्होंने, बेगुनाह कैदी, और दूसरा उन्होंने एक जो है कमसिन लड़की का कत्ल हुआ था गुजरात में, और उसको इनकाउंटर बताया गया था जबकि वो फेक था, इशरत जहां इनकाउंटर नाम से उन्होंने 2 किताबें लिखी, और बहुत अच्छे वो जर्नलिस्ट भी हैं। और वो जो है जब जब मुझसे मिलते थे उन्होंने कहा, वो हमेशा कहते थे कि भाई अब जो है हालात नहीं आने वाले, जो हो चुके। फिर जो है एक दिन जो है कुछ दिन पहले उनका मुझे कॉल आया, और उन्होंने कहा कि यार चारों तरफ से पुलिस ने मेरे घर को घेर रखा है, और बम्बई का ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको मैं जानता नहीं हूँ। मैंने जिन लोगों को कॉल किया और कहा कि ऐसे हालात है मेरे ऊपर, मुझे बचाइए। मैंने जब दूसरा कॉल किया तो उनका फ़ोन या तो स्विच ऑफ था या उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। उनका नाम अब्दुल वाहिद शेख है, वो जो है अंजुमन इस्लाम में टीचर है। और फिर ये सुनने के बाद मैंने जो है मेरे कुछ जानने वालों को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि अब जो है मामला ख़राब है, हम भी नहीं जा रहे हैं, तुम भी मत जाओ। उस वक्त मेरे उस्ताद की जो है एक बात याद आई कि ये उम्मत जो है वो एक जिस्म के मानिंद है, अगर पैर में कांटा चुभे तो आंख रोती है, और अगर आंख नहीं रोती है तो या तो तुम अपाहिज हो या वो तुम्हारा पैर नहीं है। मैं फौरन वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद भी गली पे जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा इब्राहिम आगे मत जाओ, तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। 12 बजे के वक्त जब पूरे नेशनल मीडिया पे चल रहा था मेरा चेहरा, तो बीवी ने फोन करके कहा कि तुमने क्या होशियारी की। मेरी बीवी भी लॉयर है, वो जानती थी इस बात की संगीनी को। उसने फोन करके जब मुझे सुनाया, उन्होंने कहा कि हमको छोटी बेटी है, उसका क्या होगा, तुम अंदर चले जाओगे। मैंने कहा जो होगा अल्लाह देखा जाएगा। मगर शाम होते होते जो है सारा मसला ये हो गया। अफसर भी जो है जान गए कि ये छोड़ने वाला हमको है नहीं, वो जिस मकसद से आए थे वो मकसद उनका फौत हो गया। आखिर में उन्होंने जो है हमसे कहा कि भाई हम ड्यूटी कर रहे हैं, जो है बुरा मत मानो, जो होगा देखा जाएगा, हम कुछ लेकर नहीं जा रहे, तुम्हारा आदमी छोड़ के जा रहे हैं, इरादा तो था इसको ले जाएं आज, मगर इसको ले नहीं जा रहे हैं, इसको छोड़ के जा रहे हैं, और आप कभी जो है लखनऊ आइएगा, हम वहाँ के पाए आपको खिलाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, शाबाश। हाँ, तो जो है इस जज्बे के साथ अगर काम करना हमको ज़रूरी है, और इसके लिए चाहिए कि मैं कई सालों से जो है ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहा हूँ, लोगों को वो डाल रहे हैं, एक तंजीम उसके लिए कर रही है, ये काफ़ी नहीं है। मैडम ने शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही कि लीगल नॉलेज होना ज़रूरी है, और उसका जो है ना इलाज ये नहीं है कि हम जो है चंदा करें और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको लीगल एड दें, बिल्कुल ये नहीं है। मेरे उस्ताद जो है एडवोकेट तहवर पठान साहब ये कहते हैं कि एक वक्त आया था जब जो है सिमी के मेंबरान्स के ऊपर जो है हालात आने शुरू हुए, और वो दूसरों से जो है उस वक्त उनके घर वाले भीख की तरह जो है मदद मांगने लगे। उन्होंने कहा ऐसे ही हालात 1857 में आए थे, और ये हालात उलमा के ऊपर थे। जब सरकारी जुबान से अंग्रेजी को जो है डाल दिया गया और अरबी को निकाल दिया गया, कोई अरबी और फारसी पढ़ने वाला नहीं था। उस वक्त के उलमा ने सबसे बड़ी कुर्बानी क्या दी? अपनी औलाद की कुर्बानी दी। उन्होंने हर घर में हाफिज और आलिम को पैदा किया। उस वक्त जो माशी हालात उनके साथ वो जूझ रहे थे, आज भी वो जूझ रहे हैं, लेकिन आज भी वो अपनी औलाद को जो है उसी के अंदर ये किए हुए, और आज अल्लाह ने उनको मर्तबा दिया है। आज भी अगर हालात खराब हैं तो सिमी के वो सारे मेंबरान जिनके ऊपर हालात आए, या फिर वो जो लोग जिनके ऊपर हालात आए, वो अपनी औलाद को अगर कहते ना 92 में 93 में कि तू वकील बन, मेरे लिए खड़ा हो जा, तो 2010 तक वो अच्छा वकील बन जाता।
آج بھی لوگ تیار نہیں ہیں. ہم نے اس مہم کو چالو کیا ہے. میں گوونڈی کے اندر اس کام کو کرتا ہوں, گلی گلی جا کے بچوں کو اٹھاتا ہوں, 12ویں جنہوں نے پڑھ کے چھوڑ دیا ہے, 2 سال 3 سال ہوا, 12ویں پاس ہوئے, اس کے بعد جو ہے کام کر رہے ہیں, ہم ان کو پکڑ کے اٹھاتے کہتے ہیں, بولتے ہیں ہم تم کو فیس بھریں گے, پڑھو. ہم ان کا جو ہے لا میں ایگزام ایڈمیشن کرواتے ہیں, ان کو کھڑے کرتے ہیں. اورنگ آباد میں میں نے اس چیز کو شروع کیا تھا لا اسٹوڈنٹ ونگ آف انڈیا کے نام سے. اورنگ آباد میں 2012 میں ایک انکاؤنٹر ہوا, 17 سال کے لڑکے کو ایک اسسٹنٹ کمشنر نے جو ہے اس کی چھاتی میں گولی مار کے قتل کر دیا. اس کی شاہد تھی ایک دھوبن, اس نے کھڑے رہ کے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس نے اس کی چھاتی پہ پاؤں رکھا اور اس کو قتل کر دیا, اور دوسرے دن پیپر میں چھپا کہ وہ جو ہے فائر کر رہا تھا اور کراس فائرنگ میں مارا گیا. 2012 سے لے کے 2017 تک اس کا کیس لینے والا کوئی نہیں تھا صاحب, کوئی نہیں تھا. اور 2013 میں نے اس مہم کو چالو کیا کہ دودھ والا, سبزی والا, جو مسلمان ملتا میں اس کو جو ہے کہتا کہ بھائی تم وکیل بن جاؤ. اس کی عمر نہیں دیکھتا میں. ایک 66 سال کے ریٹائر صاحب نے میری بات سننے کے کہا کہ میں آپ کے ساتھ وکیل بنوں گا, اور ہم نے 2017 میں 112 وکیلوں کی ٹیم چالو کی, کھڑی کر دی ہم نے لا اسٹوڈنٹ ونگ آف انڈیا کے نام سے. یہاں پر ایک جج تھے وی وی پاٹل, انہوں نے ذاکر رائے کے میٹر میں جو ریلیف دی تھی, گورنمنٹ کو غصہ آیا, انہوں نے اٹھا کے ان کو اورنگ آباد میں پھینک دیا. مگر وہ اسپیشل جج تھے تو وہاں پر بھی ان کو یو اے پی اے کا چارج ملا. ہم نے وہاں گیا اور ہم نے کہا کہ ہم یہ کیس چلانا چاہتے ہیں. کورٹ نے کہا میں کوئی میٹر نہیں چلاؤں گا, صرف یہ کیس چلاؤں گا, تم کو منظور ہے؟ ہم نے کہا ہم چلانے کو تیار ہیں. اس وقت ہم نے جو ہے جمعیت علماء سے گہار لگائی. میرے استاد ایڈوکیٹ تیور پٹھان نے کہا کہ میں آ جاؤں گا, آپ لوگوں کو میں جو ہے لیڈ کروں گا, مگر ریسرچ کام آپ کو کرنا پڑے گا. کورٹ نے کہا ہم تیار ہیں. 17 دن کورٹ نے جو ہے میٹر چلا, 18ویں دن کورٹ نے سب کو جو ہے ٹیررزم کے میٹر سے بری کر دیا. یہ کام جو ہے ہم کو گلی گلی میں کرنا پڑے گا, چندے سے اور اس سے ہونے والا نہیں. اس کام کو ہم نے گوونڈی میں بھی شروع کیا ہے. اب تک تقریباً جو ہے 12 لڑکیاں اور 12 لڑکوں کو ہم جو ہے لا کروا چکے ہیں. ایک لڑکی جو ہے وہ ابھی عثمان آباد میں جج ہے, اس کو جج بنایا ہے ہم نے. اسی کام کو ہم کو اسی طریقے سے کرنا پڑے گا انشاءاللہ. جو ہے فیوچر میں جو ہے آنے والے حالات تو جو ہے آپ سب جانتے ہیں اور بھی خراب ہونے والے ہیں. ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے, اللہ جو ہے ہم کو اس کا اجر دے, اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے یہاں پر مجھے دعوت دی. میں آپ کا شکریہ بہت بہت ابراہیم صاحب کہ آپ شریک ہوئے اور اتنی بہت بہترین باتیں رکھی اور ہمیں لائے عمل طے کرنے میں ہماری مدد کی, اور ملی کونسل ممبئی کو آپ نے طاقت بخشی. میں دوستوں اب آتا ہوں میرا بھائندر کے ہمارے صدر صاحب ہیں مولانا عبدالقدوس شاکر حکیمی صاحب. آپ سے گزارش اپنی بات کو رکھیں, آپ بھی رکھیں وہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے بعد. چلیے مولانا ریحان ندوی صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہے میرا بھائندر کے, اپنی باتیں رکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دوستو اور بزرگوں, جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ 92 میں جب آل انڈیا ملی کونسل کی بنیاد ڈالی گئی تو میں اس وقت لکھنؤ میں موجود تھا اور اس کی خبر ہر جگہ پورے ملک میں پھیلی. لیکن میں وابستہ ہوا 2015 میں بامبے میں جناب راشد عظیم صاحب کی دعوت پہ. ایک اسکول کا پروگرام تھا, وہاں پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بالکل کام کرنا ہے. تو پھر انہوں نے آل انڈیا ملی کونسل کا کہ ایسے ہی ایک پروگرام کیا, اس میں مدعو کیا, اور اس طرح 2015 سے راشد عظیم صاحب کی صدارت میں بامبے میں ایک پروگرام شروع ہوا. اور اللہ کا شکر ہے اس درمیان میں جیسے کہ فارم بھرنے کی بات آئی اور بہت سارے ملکی جو حالات ہوئے, مقامی حالات ہوئے, ملی کونسل نے ہر ایک کو مطلب اس کو رہنمائی دی, اس معاملے میں سماج کی رہنمائی کی. جہاں تک میرا بھائندر کی بات ہے, میرا بھائندر میں ہم نے سب لوگوں کو, ہر طبقے کے لوگوں کو, خاص طور سے علماء کو میں نے مدعو کیا, کئی میٹنگیں بلائیں, اور جو مقامی مسائل تھے, جو ملکی مسائل تھے, اس پہ غور و خوض ہوا. خصوصاً ہم لوگوں نے اس بات پہ غور و خوض کیا کہ ہماری جو نسل ہے, نئی نسل جو کالج میں پڑھ رہی ہے اور ارتداد کا سامنا کر رہی ہے, تو ہم نے مقامی طور پہ بہت بڑی کوشش کی کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ غیر راستے پر نہ جائے, اور ان میں جو ارتداد کا فتنہ جو پھیلا ہوا ہے نئی نسل میں, لڑکیوں میں اور لڑکوں میں, وہ چیز کم ہو. جب تک ان کی دینی تربیت نہیں ہوگی اور ان کے اندر دینی جذبہ پیدا نہیں ہوگا, اس وقت تک
ان کے اندر یہ ارتداد کا جو فتنہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. تو اس طرح میرا بھائندر میں ہم لوگ سرگرم ہیں پال گھر تک، اور مختلف مسائل میں مقامی مسائل پہ ہم لوگ سرگرم ہیں. سب سے اہم چیز، باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، تقریریں بھی ہو سکتی ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آل انڈیا ملی کونسل کے ماتحت ہم لوگ ہر جگہ، ہر علاقے میں جہاں ہم ہیں، بمبئی میں ہیں، اپنے تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کریں. جیسا کہ کہا گیا کہ ہماری صف میں حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب آ جائیں تو اس کو نئی روح ملے گی. آل انڈیا ملی کونسل کو مولانا شاہد ناصری صاحب اور بھی دیگر حضرات. تو تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت ہے، اور ہر حلقے میں پورے بمبے میں ممبری شپ کے ذریعے اس تنظیم کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے. اور کام بہت سارے ہیں، اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے سماجی طور پہ، تعلیمی طور پہ. جیسے کہ بھائی صاحب نے کہا کہ لیگل والا بہت اہم کام ہے. یہ کوئی بھی پولیس والا کوئی بھی مسلمانوں کو پھنسا دیتا ہے، نوجوان کو کسی بھی معاملے میں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہر فیملی میں جو بچے 2-4 وہاں پڑھ رہے ہیں تو ایک لا ضرور پڑھے. تو یہ تحریک ہم آل انڈیا ملی کونسل کے ذریعے ہم اس چیز کو کریں، اور یہ سب کرنے کے کام ہیں. اب جیسے ارتداد کی بات کی، یہ سب کرنے کے کام ہیں. تو پورے بمبے میں اس تنظیم کو سرگرم کیا جائے، حلقہ بنایا جائے. بہت سارے مسلم علاقے ہیں وہاں جہاں تنظیم نہیں پہنچی ہے، وہاں کوئی مقامی تنظیم نہیں ہے. لوگوں کو جوڑا جائے، ہر طبقے کے لوگوں کو جوڑا جائے اور کام کیا جائے. ورنہ تنظیمیں تو بہت ساری ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. بس میرا درد یہی ہے کہ ہم کام کریں. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر. حضرات، ہمارے درمیان ممرہ سے تشریف لائے ہیں مولانا مفتی عبدالباسط صاحب قاسمی ندوی. یہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو قومی نائب صدر ہیں آل انڈیا ملی کونسل کے، ان کے خاص تربیت یافتہ ہیں، اور ممرہ میں ان کی بہت ہی عظیم الشان سیاسی سماجی سرگرمیاں بھی ہیں. فلسطین کے مسئلے پر وہاں یہ بہت زبردست احتجاج کر رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن. تو ہاں، دعا کیجئے کہ وہ کامیاب بھی ہو. آل انڈیا ملی کونسل سے فکری طور پر یہ جڑے ہوئے ہیں، اور اب باضابطے مہاراشٹر میں انشاءاللہ اپنی سرگرمی سے ملی کونسل کو یہ مزید آگے بڑھائیں گے. ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مولانا مفتی عبدالباسط صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. حضرات علماء کرام، دانشوران اور مقدس معزز مائیں اور بہنیں، آل انڈیا ملی کونسل کا یہ جو اجلاس منعقد ہو رہا ہے، اس کی تفصیلات اور غرض و غایت پورے طور پر میرے سامنے نہیں ہے، لیکن جو باتیں میں نے اب تک سنی، اس سے 2 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ تنظیمی شکل کو مضبوط کرنا ہے اور اس کے دائرۂ عمل کو آگے بڑھانا ہے. یہ 2 باتیں سامنے آئی ہیں. تنظیمیں الحمدللہ بہت سارے موجود ہیں اور مسلمانوں کی، اور بہت سارے مقاصد پہ بڑے حد تک کام کر رہی ہیں. ملی کونسل کی بھی غرض و غایت پہلے سے متعین ہوگی الحمدللہ، اور اکابرین کی ایک جماعت ہے یہ. ہمیں کوئی ایک چیز کو ٹارگٹ لے کے چلنا ہے. جیسے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے ایک بات بتائی کہ وکلا کی ٹیم کو تیار کرنا. ابھی جیسے RSS ایک جماعت ہے، اس کے پاس میں 100 سے زائد تنظیمیں ہیں. ہر تنظیموں کو انہوں نے کام دے رکھا ہے. کسی کو لڑنے کا کام دے رکھا ہے، کسی کو میڈیا کنٹرول کرنے کا کام دے رکھا ہے، کسی کو کچھ، اور ساری اس کی ونگز ہیں، لیکن سب کو آزاد اور خود مختار رکھا ہے کہ اگر RSS بینڈ بھی ہو جائے گی تو اس کی زیری 100 تنظیمیں کام کرتے رہیں گی. تو ہمیں بھی خود مختارانہ الگ الگ جو جماعتیں ہماری بن رہی ہیں، اس کے الگ الگ مقاصد کے ساتھ ساتھ اس کے دائرۂ کار ہمیں بنانے ضروری ہیں کہ ہم جس ایک نوعیت کو لے کر کے جائیں. جیسے جمعیت علماء ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ہے، بہت ساری جماعتیں ہیں،
ان کے ایک دائرہ عمل ہے. تو ہم اس جماعت کو اگر ہم کہیں بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، یا اس کے تنظیمی ڈھانچے کو ہم بنانا چاہتے ہیں، جمعیت علماء ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ متحدہ پلیٹ فارم ہے اور فلاں فلاں تنظیمیں ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے اکابرین جو ہیں، اس کے صدر بورڈ ہیں، اس کی جو آل انڈیا لیول کی کمیٹی ہے، جو مفکرین دانشوران ہیں، ان کے ضابطے، ان پہ اس تعلق سے غور و خوض کرنے والے حضرات ہیں، اس کا ایک مخصوص لائحہ عمل اور ایک طریقہ کار متعین کیا جانا ضروری ہے، تاکہ ہم اگر ایک تنظیم اور ایک تنظیم نشست کو بڑھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کی خصوصیت کو، اختصاص کو سامنے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، تو ہم اپنے دائرہ کار کو بآسانی بڑھا سکیں گے. اس لیے ہمیں مکمل طور پر اس کے کچھ اختصاصی مقاصد اور جماعتوں سے ہٹ کے متعین کرنا ضروری ہے. جب تک یہ ہم متعین نہیں کریں گے تو ہم اس جماعت کو وسیع کر نہیں سکتے، اس جماعت کو سسٹمیٹک طریقے سے لا کر تنظیمی ڈھانچہ نہیں کھڑا کر سکتے. اور جو اس کے ذریعے سے اجلاس کرنا، آج کی تاریخ میں جلسے عام کرنا، کوئی بھی ایک ہاٹ ٹاپک سلگتا مسئلہ لے کر کے وہاں شاکر صاحب اپنے نام کا بینر لگا دیں گے، 50,000 لاکھ کا مجمع آ جائے گا، مفتی صاحب کھڑے ہو جائیں، ایڈوکیٹ صاحب کھڑے ہو جائیں، محترمہ کھڑے، کوئی بھی ایک شخص کھڑا ہو جائے کسی بھی ایک ہاٹ ٹاپک کو لے کر، 50,000 لاکھ آدمیوں کا مجمع پبلسٹی کر کے، تھوڑا خرچہ کر کے آپ جمع کر سکتے ہیں. لیکن کسی بھی تنظیم کا مقصد اس سے پورا نہیں ہوگا، مقصد اس کے کانکریٹ اور زمینی کام سے ہوتا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی یہاں پر ایڈاک کمیٹی کی یہ میٹنگ چل رہی ہے، ہم اس چیز کو پہلے غور و خوض طے کریں کہ ہم عوام کے سامنے کیا موضوع، کیا عنوان، کیا اختصاص پیش کر سکیں، جس سے ہم دوسرے لوگوں کو اس کو اندر جوڑ سکیں. کیونکہ جب تک کریم طبقہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، عوام کی بھیڑ سے جمہوری ملک میں اپنی ووٹنگ، اپنی طاقت ظاہری ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن کریم طبقہ، مفکرین، دانشوروں کا طبقہ، علماء کا طبقہ اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم ایک صحیح فکر میں اس بھیڑ کو لے کے چل نہیں پائیں گے. اور جو ہمارے ہاں مسائل ہیں، خاص طور سے موجودہ حکومت ہو یا اس کے بعد سیکولر حکومت بھی آ جائے، تو جو مسلمانوں کے ملی مسائل حکومت کے ذریعے سے ٹکراتے ہیں، اس کے لیے تعلیم یافتہ طبقے کے ساتھ علماء، دانشور، مفکرین، ٹیچرز، ایک بڑی ٹیم کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اور جس جماعت کے پاس میں یہ ٹیم موجود ہے وہ کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی ہند ہے، ان کے پاس بھیڑ کم ہے لیکن انٹلیکچوئل طبقہ موجود ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ کام اپنے میدان میں کر رہے ہیں. اور بھی ایسی بہت ساری جماعتیں ہیں. تو اس لیے ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہے اور اس کی کوشش کرنا ہے. الحمدللہ جیسے وکیل صاحب نے بتایا، ہم نے بھی اس سال تقریباً 4 بچوں کا داخلہ کنوینس کر کے، پچھلے 1 سال محنت کر کے 4 بچوں کو جو فیملی والے ہیں، کوئی 35 سال کے ہیں، کوئی 40 سال کے ہیں، کوئی اور دوسرے مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے لاء میں داخلہ کرایا ہے. کوشش چل رہی ہے. ابھی بدھ کے روز ایک سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ہے، SDPI، ان لوگوں نے ایک احتجاج چھوٹا سا کیا تھا، تقریباً 15 لوگوں پر کیسز بنا دیے ہیں پولیس نے. ایک دم نارمل روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، خاموش احتجاج تھا، اس میں دعا ہوئی. اب ظاہر کتنا بھی خاموش احتجاج، اتنا سلگتا مسئلہ ہے، 2 4 10 نعرے اس میں لگ جاتے ہیں. اور وہ نعرے بھی ایسے نہیں کہ جو ملکی قوانین کے خلاف، فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا مسئلہ تھا. لیکن ہماری فکری سوچ اتنی کمزور ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ بھی اتحاد کے ساتھ میں کریں گے، پارٹی نے کال کر دیا تو انہوں نے اپنا کر دیا. تو اب ڈپارٹمنٹ کے پاس جانے کے بعد میں کیا بات رکھنی ہے، یا ان کی کمزوریاں اگر ڈپارٹمنٹ ہمیں پیش کرتا ہے تو کس طریقے سے وہ کرنا ہے، یہ ایک لیگل فارمیٹ جو ہے کہ بھائی اگر بھائی مسلمان سے کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو ڈپارٹمنٹ ہمارے سامنے آتا ہے، یا کوئی ایسے مسئلے آتے ہیں جہاں ڈسکشن کا گروپ بنتا ہے تو ہم وہاں غلطی ایکسیپٹ کریں یا ڈپارٹمنٹ کو کوئی صلاح دیں. یہ ایک بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بات رکھنے کے لیے، اپنے معاملات رکھنے کے لیے بعض مرتبہ ڈپارٹمنٹ کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں کہ ہاں بچوں نے غلطی کر دی ہے، اب ان کو چھوڑ دیا جائے فلاں. ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تو اب وہ تو ان کو قانونی کارروائی کرنے کا ہم نے پاور دے دیا ہے. تو ایسے بہت سارے موضوعات ہیں کہ لیگل ایڈ کیسے کی جائے، لیگل اویئرنیس کیسے کیا جائے لوگوں میں، اور قانونی معلومات علماء کی طبقے کے اندر، اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں کے درمیان میں، ٹیچرز حضرات کے درمیان. آج پولیس کسی کے دروازے پہنچ جائے تو آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے.
कुछ भी आप प्रोग्राम करें, आज की तारीख में एक ट्रेंड बन गया है, 149 का नोटिस पहले दे दिया जाता है कि कोई भी अगर क्या कहते हैं आपने गलती हुई या कुछ भी हुआ तो आपके ऊपर केस चार्ज किया जाएगा। तो इस सब के कानूनी मरहले क्या हैं? बहुत सी मरतबा इसलिए लोग आगे नहीं आते काम करने के लिए, मैदान में नहीं आते हैं। कई तकरीबन 8-10 नोटिसें मेरे नाम की पड़ी हुई हैं, हम लोग चूँकि काम करते हैं इसलिए उसकी क्या हैसियत है क्या नहीं है, बहुत सी मरतबा हम लोग रिसीव नहीं करते, पुलिस से लड़ लेते हैं, कैंसिल करवा लेते हैं बात करके कि भाई किस बेस पर आप दे रहे हैं। हम खामोशी के साथ में एक तरफ एक मैदान में हम खड़े होने जा रहे हैं, रोड नहीं ब्लॉक होगा, दूसरी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे है ही नहीं, वन साइड मेजोरिटी के लोग यहाँ रहते हैं, किस बेस पर आप दे रहे हैं? लड़ाई झगड़ा होगा तो आपको नोटिस हम दे रहे हैं, तो कैंसिल करवाते हैं। टाइट होना पड़ता है, बात करना पड़ता है। बाद मरतबा ऐसा होता है कि पुलिस वाले हमसे आके माजरत करते हैं कि भाई आप आगे तक मत जाइए, ऊपर मत जाइए, हम क्या कहते हैं यहीं पर क्लोज करते हैं मैटर। तो ये सब चीज़ों की अवेयरनेस भी हमें लानी है। तो तंजीम के अंदर इस तरीके के कुछ मकासद मैंने कुछ उन्वानात रख दिए हैं कि तंजीमी ढांचों को फैलाने के लिए हमें इस पर गौर व खौज करना होगा, एक लाहेमल मुरतब करना होगा, और वो लेके जब क्या कहते हैं हम तंजीमी नशिस्त और तंजीमी सिलसिले को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि हमारी जमात एक नुमाया काम कर सकेगी और नुमाया मकाम हासिल कर सकेगी इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। माहिल्लाह अमल तो पहले से बहुत अच्छा मुरतब है और बहुत तरतीब से दस्तूर असासी यहाँ मौजूद है। इसमें अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम लोग उसमें और तरतीब और अच्छी करने की कोशिश करेंगे। और ये जो दस्तूर है ये किसी से टकराता हुआ नहीं है, बहुत कायदे की बातें हैं, इंशाअल्लाह वो काम आएंगी। ज़रूरत है मैं ऐसे ही आप जैसे नौजवान लोगों की जो हमारी मिली कौंसिल के मकासद और अगराज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। माशाअल्लाह, बहुत ही वाक़तन मुफ्ती अब्दुल बासित साहब ने जो रहनुमा खतूत पेश किए हैं वाक़तन बहुत उम्दा है। और इंशाअल्लाह रहमान ऑल इंडिया मिली कौंसिल महाराष्ट्र और ऑल इंडिया मिली कौंसिल मुंबई कुछ तखस्सुसात और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इंशाअल्लाह मैदान अमल में ये हजरात आएंगे और काम किया जाएगा इंशाअल्लाह। जनाब सैयद इकबाल साहब से गुजारिश है कि मिली कौंसिल से चूँकि फ़िक्री तौर पर जुड़े हुए हैं और उसी ज़मीन से ताल्लुक़ है तो इसलिए गुजारिश ये है कि अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। मैं दिल्ली होता हूँ, 10-15 साल में बॉम्बे रहा और मुझे अच्छी तरह याद है डॉक्टर मंजूर आलम साहब मेरे घर आए थे मेरे वालिद के पास, और इसके खतूत जो जिस वक्त बन रहे थे उसमें हम लोग बुनियादी तौर पे शामिल रहे। तो दिन रात ये कोशिश करते, लेकिन अभी इन दो हजरात ने और हमारे एडवोकेट फरहाना आपा ने जो बातें कही, वक्त की सबसे अहम ज़रूरत वही है। बिल्कुल, क्योंकि मैं दिन रात इन चीज़ों में रहता हूँ कोशिश। मैं भी औरंगाबाद हैदराबाद था 10 दिन तक, तमाम लोगों से मैं इन्हीं खतूत पे गुफ्तगू होती रही। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वक्त की वो यही है, इसलिए एक से सियासी बेदारी एक अहम उसको वो की जाए, और साथ साथ जो हमारे वकला हैं अहम, आप शायद वाकिफ़ हो इरशाद हनीफ साहब, क्रिमिनल के बड़े लॉयर हैं, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं निज़ामुद्दीन में, वहाँ दिन रात हम लोग इन चीज़ों के लिए कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारे आज़ाद थे, तो मैं जितनी भी मुमकिन कोशिश होगी मेरी तरफ से वो मैं ज़रूर करूँगा। बहुत सारे और लोग हैं, अपनी गुफ्तगू रखें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अख्तर शेख है और मिली कौंसिल से हम लोग करीब 7-8 साल से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर सब बड़े दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं, मैं कम इल्म शख्स हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानता। हम लोग चाहते थे कि पहले हम मुकामी जो इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, हम लोगों ने तो हमारे वहाँ पर वार्ड अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, ज़िला अध्यक्ष, इस तरह की हम लोग ने हमारी सेटिंग की थी। हसन भाई उसके गवाह हैं। तो हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि हम मिली और कौमी मसाइल तो हैं, ये होते रहेंगे, लेकिन लोगों को हमसे करीब करने के लिए, हमसे जोड़ने के लिए हम लोगों को क्या दे रहे हैं। साल में 1-2 बार ऐसे मीटिंग होगी, जलसे होंगे, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होगा, ईमान ताज़ा होगा,
लेकिन हम जब लोगों में जाते हैं काम करने के लिए तो लोगों के बहुत से मसाइल होते हैं। कानूनी मसाइल तो बहुत है। आपा को मैं बहुत पहले से जानता हूं, बट हमारा कभी सामने इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। और हमारे दूसरे साथी भी बता रहे थे कि गोवंडी में वो बहुत काम कर रहे हैं। तो नौजवान लोगों को जोड़ने के लिए मॉडर्न सोच को बनाना भी ज़रूरी है। मुकामी इश्यूज वो सिर्फ पुलिस स्टेशन या कानूनी है ऐसे नहीं है, बहुत से इश्यूज हैं। और मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि हमको सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पर जोर देना चाहिए, गौर करना चाहिए, तो वो एजुकेशन ही हमारा एक हथियार है जिससे हमको जीत मिलेगी। अभी अभी हजरत ने कहा था कि एक फिक्र तैयार होनी चाहिए कि हमको करना क्या है। मैं सियासी पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूं, माफी चाहूंगा। मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब के ठाकरे की पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। एक ही चीज हमको समझना चाहिए, सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि हम किसी भी मसलक के हों, किसी भी फिक्र के हों, किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, अगर हम मुसलमान हैं और वतन परस्त हैं तो मोदी को कैसे हटाया जाए उस पर हमको अमल करना चाहिए। सबसे पहले मोदी को कैसे भगाया जाए उस पर हमको सोचना चाहिए। अख्तर भाई, ये सियासी मीटिंग नहीं है, सियासी जो मैं बिल्कुल सियासी बात नहीं कर रहा, उस पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। हजरत ने फरमाया कि हमको करना क्या है आगे काम, तो मुझे ऐसा लग रहा है नाम लेने की जरूरत नहीं है, बिना नाम लिए हुए बात कीजिए। जी जी ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं कम इल्म हूँ, मुझे ज्यादा इसमें मालूमात नहीं है। तो इलाकाई काम, इलाकाई लोगों को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। हसन भाई, हम लोग इस पे पहले भी बात कर चुके थे, सदर साहब को भी हमने ये बात बताई थी। इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो एक नया तबका जुड़ते जाएगा और मिली कौंसिल इंशाअल्लाह बढ़ते 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 बहुत बढ़ जाएगा। अल्लाह हाफिज। तो आपने अपनी बात को रखा, यकीन आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। मैं ये कह रहा था कि हमारे अख्तर साहब जो है पहले एनसीपी से जुड़े थे, अब वो शिवसेना में चले गए हैं। अब शिवसेना की सोच क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमने हमेशा फिरका परस्त जमातों से दूरी बरकरार रखी अपनी, कि जो सेकुलर पार्टियों के नुमाइंदे हैं या जिम्मेदार है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, हमारे भोपाल के जिम्मेदार है माशाल्लाह, एमएलए हो कांग्रेस के, जो मिली काउंसिल के जिम्मेदार है, मुझे नाम याद, आरिफ साहब। और जहाँ तक आपने बात की कुछ बुनियादी जो हमारे मसाइल हैं, तो ये तो ऐसा है कि बुनियादी जो हमारे मसाइल है, कोई भी वार्ड हो, म्यूनसिपलिटी के, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, हॉस्पिटल हो, ये तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने इलाके में जो है उन बुनियादी सहूलतों पर ध्यान दें। सियासी पार्टियां कितना करती है हम जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन एक बाइज़ इंसान होने के हमारी जिम्मेदारी है कि हम इलाकाई जो मसाइल है उस पर तवज्जो दें। मिली काउंसिल एक तहरीक है जो पूरी हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, और मुसलमानों के वो मसाइल जिसको आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर उठाना जरूरी है, चाहे वो बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन पर बात करती है। अब जो हमारी यूनिट है या इलाकाई यूनिट है या इलाके के हमारे जिम्मेदारान है, वो करे, बिल्कुल करे, वेलकम, उसको किसने रोका है, करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम भी कर रहे हैं, इनफरादी तौर से कर रहे हैं। लेकिन उस पर कोई हमने खास ऐसा मीटिंग नहीं ली कि भाई चलो यार आज जाके ना एल वार्ड पे या साउथ मुंबई के बीएमसी ऑफिस पे धरना देते हैं, मोर्चा देते हैं, ये अलग बात है। ये इसको करना चाहिए, करें आप, बिल्कुल वेलकम है। लेकिन हमें इस वक्त जो हिंदुस्तान के हालात है, जो बड़े बड़े मसाइल है मुसलमानों के साथ में, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे वो हमारे रिजर्वेशन का मामला हो, औकाफ की ज़मीनों का मामला हो, इस पर काम करने की ज़रूरत है। हम इस पर कितनी ताकत अपनी झोंक सकते हैं, ये बड़ा अहम मसला है, ये अहम सवाल है। ये आज माशाल्लाह यहाँ पर थी मीटिंग, सियासी पार्टियों का यह हाल है। मैं कहना नहीं चाहता था कि आपने बुलवा दिया, मैं कहना चाहूँगा कि रिजर्वेशन की बात करें मुसलमानों की, जब आपकी सरकारें थी उस वक्त आपने क्या किया? आप कौम को बेवकूफ बनाते हैं क्या? बात निकलेगी तो बहुत दूर चली जाएगी, वो मौजू पे नहीं जाना चाहते हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं, मकसद पे आते हैं। मैं चाहूंगा मुस्तकीम मक्की साहब अपनी बात रखें। नहीं मुस्तक अभी जो आपने सुना, हमारे नौजवान आलिम तकरीर किए थे, कितनी बेहतरीन तकरीर की, हर टॉपिक पे किया। और ये वकील साहब हैं, हमारी वकील साहबा हैं जो बैठी हैं यहाँ पे, फराना साहब, ये मॉडर्नाइजिंग है ये, वरना कोई दीन का सुतून थोड़ी है वकील बनाने का। इस वक्त शर्त यह है कि बेशुमार बेकसूर को अंदर किया जा रहा है, वो कानून नहीं जानेगा तो कैसे दिफा करेगा, कैसे बचाएगा उसको, कैसे लड़ेगा, कैसे आंखों में आंखें डाल करके बात करेगा, किससे, गवर्नमेंट से या वकील से या थानेदार से या कमिश्नर से। तो ये तो काम चल रहा है। पहली बात सारे लोग वही बता रहे हैं मिली कौंसिल के। दूसरी बात, ये कोई फर्ज सुन्नत नहीं है
जैसे कि 800-900 साल पहले एक फलसफा का दौर था पूरी रुए जमीन पे, कि जिसको फलसफा नहीं आता उसको जाहिल समझते थे। उसी दौरान इमाम गजाली ने को सब उलमा बैठे हैं आए मैदान में और फलसफे के जरिए से इस्लाम को पेश किया आलम को, तो जिसके बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली नहीं। अगर वो फलसफा वो जुबान इल्म नहीं सीखते तो कैसे जवाब देते। उसी एतबार से आज के दौर में 2092 जो फसाद हुआ था, कितना 92 में, उसके जो हालात बने, इसलिए अहले राय और जितने हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वही राय दे रहे हैं कि सबसे पहले हर घर में एक अपना बच्चा, अगर 2-4 बच्चे हैं तो एक वकील बने। ये वक्त की जरूरत है, फर्ज सुन्नत नहीं है, ये वक्त की जरूरत है, ये वकील बने। लेकिन एक और मैं बता दूं इस वक्त उलमा की भी कमी है। हमारे तंजीम में बहुत अच्छा काम है और जो बानी थे आपको तो हम सब लोग जानते ही हैं, ये बहुत बेहतरीन काम है, लेकिन उलमा को नजरअंदाज नहीं करने का, उलमा को इसमें रखने का, ताकि उलमा हमें तरबियत दें। कोई भी इल्म, एक वकील बन गया, जज बन गया, कमिश्नर बन गया, तरबियत नहीं तो जंगली जानवर से बदतर है। वो हमारे सामने है आज इंडिया में, बेशुमार दर्जनों के हिसाब से IPS ऑफिसर हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। अल्लाह के नबी की उम्मती होने के नाते मैं बोल रहा हूं, कुछ नहीं जानते। IPS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, कमिश्नर है, क्या फायदा। इसलिए नहीं, जरूरी है ना भाई, जरूरी है ये। इस उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, दुनिया के अंदर मुसलमान ईमान वाला हो, क्वालिटी में हो, क्वांटिटी नहीं चाहिए। क्वांटिटी की जरूरत नहीं। अभी जो आपने बयान किया ना, अभी इससे कोई भेड़ बकरी की तरह है, कोई फायदा नहीं होता, वही क्वालिटी चाहिए थी। इसलिए ये जमात जो है, अच्छा ये जमात ऐसी है कि जैसे हम मिली काउंसिल में आ गए हैं पहले से, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, कोई भी हो यहाँ पे जमीयत उलमा काम करती है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड काम कर रही है, इससे टकराने का नहीं और ये नहीं कहने का कि आपसे बेहतर मैं काम कर रहा हूं। ये बड़ा गड़बड़ है, ये बड़ा फितना फैलता है। इससे सब हमारी जमात है, सब हमारी जमात है और सब के साथ मिल करके काम करना चाहिए। ये मेरे तरफ से मेरी अपनी राय है और मैं भी इससे कोशिश करूंगा चलने की इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जिसका नाम है बांद्रा ईस्ट बहराम नगर। एक बहुत बड़ी बस्ती है मुसलमानों की, जिसको हम बोल सकते हैं कि झोपड़पट्टी का इलाका है वो। और जो इंसान के पास, जिसके पास तालीम है उसके पास रोशनी है, और जिसके पास तालीम नहीं है वो अंधेरे में जी रहा है। और एक बात मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप भी उस बात को तायद करेंगे कि हमारे मोहल्लों में किताबें और लाइब्रेरी बहुत कम मिलेंगी आपको, लेकिन बिरयानी और कबाब की दुकानें ज़्यादा मिलेंगी। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जहन सिकुड़ते जा रहे हैं और पेट बड़े बड़े होते जा रहे हैं। ये बात इसको मैं नोट कर रहा हूँ। जामा मस्जिद जो हमने देखा दिल्ली की इतनी बड़ी मस्जिद है, उसके इर्द गिर्द ये वक्त था कि वहाँ पर किताबें की दुकान हुआ करती थी। आपको बहुत मुश्किल वहाँ पर किताबों की दुकान मिलेंगी, आपको वहाँ पर बिरयानी और कबाब की दुकान ज़्यादा मिलेंगी। अब फिलहाल तो है एक ही है, मतलब एक वक्त था कि चारों तरफ थी दुकानें। तो ये हमारी कौम किस तरफ जा रही है, आप इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, मैं सोचता हूँ कि हमको फील्ड पर उतर के काम करना पड़ेगा इसके लिए। और फील्ड पर उतरना मतलब क्या होगा कि हमको हर एक बस्ती में जाके एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेने पड़ेंगे, लोगों को बेदार करना पड़ेगा, बच्चों को निकालना पड़ेगा, जिस तरह के हजरत ने बोला अभी। क्योंकि अगर आंकड़े की बात करें हम लोग, तो हमारे मुस्लिम कौम के अंदर 70 से 75% ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं। मैं आपको अगर एक आंकड़ा बताऊं और, तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि 100% माइनॉरिटीज जो मुंबई की महाराष्ट्र के इंडिया में रहती हैं, 70 जिसमें कि 11% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं। क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ 11% है और उनके स्कूल 70% हैं। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है हमारे बीच। 70% स्कूल ऐसी माइनॉरिटीज के हैं जो 11% हमारे अंदर है। हमारी खुद की जो स्कूल वगैरह है वो 20% भी नहीं है।
ابھی آپ نے بات کی کہ میں تھوڑا وقت زیادہ لوں گا آپ کا، معذرت چاہتا ہوں. نیتا بنتے ہیں لوگ، بڑے بڑے نام کماتے ہیں لوگ. آپ نے کتنا کالج بنائے، آپ نے کتنے یونیورسٹیز بنائے، آپ نے کتنے ہاسپٹلز بنائے؟ ایک مثال نہیں ہے. اپنے نام کے لیے سب لڑ رہے ہیں کہ میرا نام کیسے ہو جائے، میں اس سے کیسے آگے بڑھ جاؤں. اپنے نام ہے ہی نہیں، بہت سے لوگ کو تو ہے ہی نہیں سر. تو میں یہ بولتا ہوں کہ جس جگہ سے میں آتا ہوں میں وہاں پر آبزرو کرتا ہوں، اور میں بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں. میں آج ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں جو تعلیم کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہماری قوم کی تعلیم کا معیار کیسے بڑھے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے سراج بھائی صاحب کا جو مجھے آج یہاں پر لے کے آئے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس تنظیم سے جڑوں اور کام کروں. اور میں ایک بات دل کی گہرائی سے بولنا چاہتا ہوں کہ میں تعلیم کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں. اگر تعلیم بڑھے گی ہمارے اندر تو ہمارا معیار ضرور بڑھے گا آگے. آج میں دینا چاہوں گی اس کے اوپر آپ بول رہے ہو. اگر آپ لوگ سنے ہوں گے ریشما مومن کا نام، کرلا قریش نگر میں ایک وہ واحد انسان ہے جنہوں نے وہ سارے سلم، آپ رشید بھائی دیکھیں گے کبھی، دیکھیے آپ، بہت اچھا کام کر رہی ہے وہ. جو بھی وہ پہاڑ کے اوپر اور وہاں سارے لوگ رہتے ہیں نا، وہاں کے بچوں کو وہ فری ایجوکیشن ان دا سینس کہ انگلش اسپیکنگ، سارے بچے وہ میونسپل اسکول میں پڑھتے ہیں لیکن وہاں پر آتے ہیں کلاسز میں. اور میں ہر سال الحمدللہ میں ہر سال جاتی ہوں ان کے یہاں. وہ ہر سال مجھے بلاتی ہے بیکاز وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں آپ آتے ہو تو ہمارے یہاں سب بچوں کو بہت انسپریشن ملتا ہے. تو وہ بچے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ انگلش بھی اتنی اچھی بولتے ہیں اور سارے جذبے. اور پہلے تو میں گئی تھی تو بہت چھوٹا سا گھر تھا، وہ صحیح بھی نہیں تھا، حالات بہت برے تھے، لیکن پھر تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے بہت اچھا بنا لیا. اور عورتوں کو بھی سکھاتے، لڑکیوں کو سکھاتے، ٹیچرز ہیں، اور وہ ایک واحد انسان ہے جو کام کرتی ہے. اور ماشاءاللہ ان کے یہاں وہ میڈیکل کا بھی کیمپ رہتا ہے. ایوری تھرسڈے میڈیکل کی وین آتی ہے، وہاں پہ سب بچوں مطلب جو بھی بیمار ہے ان کو دوائیاں بھی ملتی ہیں. تو شی از ڈوئنگ ویری گڈ ایفرٹ. لیکن دیکھیے ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں نا، وہ ان کو اگر سپوز وہ آئے آپ کے پاس کہ پلیز اگر آپ کچھ لوگ، بیکاز ایک اکیلا انسان ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے، ہر چیز میں پیسوں کی ضرورت تو لگتی ہی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آئے گا تو ہاں سوچیں گے، دیکھیں گے، کوئی ہیلپ کرنے کے لیے آتا نہیں ہے. تو فائنینس از آلسو ون آف دا امپورٹنٹ تھنگ وچ از ریکوائرڈ. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو آپ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو اگر اس میں سے 10 روپیہ بھی دیں گے تو بہت بڑی بات ہے. وہ پلٹ کے آپ کے ہی فیور میں آنے والا ہے بیکاز یہ آخرت کے لیے آپ کے لیے جمع ہوگا. لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں جو ایسا سوچتے اور ایسا کرتے ہیں کام. بڑی بڑی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو کوئی ہیلپ کرنے نہیں آتا ہے. میں مختصر میں اپنی بات مشکل ہے جی کہ بس ایک بات یہ ہے کہ آئیے ہم اترتے ہیں نیچے، بستی میں چلتے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے پروگرام لیتے ہیں وہاں پر. اور شروعات میں کرتا ہوں، آپ سب کو دعوت دیتا ہوں میں، آپ آئیے. میں پروگرام لگاتا ہوں اپنے بستی کے اندر اور بار بار اس پروگرام کو لگائیں گے اور لوگوں کو اس اویئرنیس کریں گے، لوگوں کے اندر بچوں کو باہر نکالیں گے، جو ڈراپرس ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ میں رہوں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ راشد منصوری صاحب. بہت اہم بات پہ توجہ دی آپ نے. تعلیم کو لے کر ملی کونسل کا باقاعدہ مشن شروع کیا ہے. مشن تعلیم کو لے کر ایک مشن ہے ملی کونسل کا. تو جو آپ نے باتیں رکھی انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے محلے محلے گلی گلی اور اس کی شروعات کریں گے انشاءاللہ آپ سب کی طاقت کے ساتھ میں. اور آپ نے ایک بات اور کہی ذائقے کی کہ مسلمان تو آج ہے نا زبان کا غلام ہو کے رہ گیا ہے. جہاں بات آتی ہے کہ بھائی خرچ کرنا ہے تو وہ ملت کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ڈھابوں پہ، چوراہوں پہ، کلبوں میں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ بار میں، سارے کام جتنے ہیں جو انہیں غلام بنا رہی ہے وہ کرنے کو تیار ہے. وہ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے. اب اور کون؟ آپ نبی ادریسی صاحب جو ہے ہمارے اہم ذمہ دار. تو میں چاہوں گا نبی بھائی اپنی بات کو رکھیں. شکریہ راشد بھائی. جی میں دراصل میں ابراہیم بھائی اور فرحانہ جی جو ابھی ایجوکیشن کی بات آئی الگ الگ فیلڈ میں تھوڑی سی اسی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. آل اوور انڈیا کے بچے 200 بچے جن میں 40 لڑکیاں
सब गेट के बाहर थी, कोई पुरसाने हाल नहीं था उस टाइम। इत्तेफाक की बात समझिए कि मैं 10 साल पहले से ऑनलाइन आजम कैंपस से तरबियत लेकर के मैं ऑनलाइन चलाता था। तो हमने वहाँ अनाउंस किया कि हम उन बच्चों को जो है क्लास आगे की पढ़ाई जारी करेंगे। ये बात को सुनते हुए सरफराज राजू साहब ने लॉकडाउन के पहले ही मुझसे कहा था कि आप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन जो करना चाहें हमारे खिलाफत हाउस आपके लिए हाजिर है। लेकिन दोनों जगह से शुरू हुआ माशाल्लाह। डॉक्टर जहीर काजी साहब ने भी बुलाया, वहां से उन बच्चों की तरबियत तालीम उनका आगे बढ़ा जो 3 साल 4 साल, 1 साल ही नहीं 3-3 4-4 साल के भी सीनियर बच्चे थे उसमें हज हाउस में, उनको निकाल दिए। अचानक निकालने के बाद में बहुत बुरा हाल था। हमने जो क्लास ओपन किया उन बच्चों को सहारा मिला। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे हालात, बुरे हालात वाले बच्चों को जब सहारा मिला तो 19 बच्चे इसी इस्लाम जिमखाना के बड़े मैदान में उनका इस्तकबाल हुआ है। वो आप में से बहुत से लोग हाजिर रहे होंगे। 4 यूपीएससी क्लियर किए, 14 एमपीएससी क्लियर किए उन्हीं बच्चों में से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्हीं हालात के मारे बच्चों में से 14 एमपीएससी और 1 आईबी ऑफिसर बना जो इस वक्त कश्मीर में तैनात है। लेकिन मैं एक और कहना चाहता हूं, बहुत तल्ख बात है कि इतना सब जानते सुनने हुए भी दर दर भटकने के बावजूद कोई भी जो है सहारा उन बच्चों को आगे फाइनेंस किसी ने नहीं किया। तो कुछ लोग जरूर आगे आते हैं, लेकिन बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी, जिनको अल्लाह ने नवाजा है उनकी भी जिम्मेदारी, वो भी आकर के साथ देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। हम मनफी बातें ना करें, और ठीक है वो अपनी जगह पे ऐसे बहुत सारे मसाइल बम्बई शहर में हो रहे हैं, चाहे सियासी समाजी तौर पे, जहाँ पर बहुत बुराई है। हम कितनी बुराई पेश करेंगे? 30 साल हो गए, 92% अभी बता रही थी, अभी तक लोग हैं। उसका क्या बोलेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। इधर बताया राशिद साहब सही कह रहे हैं, क्या बात करोगे? जख्म पूरा जख्मी है, सही कह रहे हैं। तो जो अभी चलिए खैर कोई बात नहीं। नबी साहब नहीं, इलाज तो माशाल्लाह आप कर रहे हैं ना, आप इलाज कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है। बहुत अल्लाह ताला आपके काम को कबूल करे, आपके इस खिदमत को। हमारे साथ एक हमारे साथी है अतीक रहमान सर, जो कि बीएमसी में टीचर है और मिली काउंसिल से बहुत शुरू में जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा देर हो गई उन्हें आने में। तालीम पर जितना बेहतर मैं समझता हूँ अतीक भाई कहेंगे, बीएमसी की हालत क्या है मुख्तसर? जी जी, देखिए अभी मैं बाहैसियत सदर मुदरिस काम कर रहा हूँ बीएमसी स्कूल में। तो चूँकि हमारी मुनासिबत जो है तो अपनी कौम व मिल्लत से है, लिहाजा इस नुक्ते पर जैसे तालीम पर काफ़ी बात हो चुकी है यहाँ पर, मैं कुछ ज़रूरी नुक्ता ये समझता हूँ कि हम जो भी इलाक़ों में हम काम कर रहे हैं बेफिल वक्त, और जो इलाक़ों से हमारा ताल्लुक़ रहा है, ऑब्ज़र्वेशन जो रहा है, वो सारे हमारे ही स्लम एरिया है, यानी मुस्लिम आबादी का हिस्सा। तो यहाँ पर हमने नशा बहुत देखा है, बहुत देख रहे हैं। और स्कूल में इवन जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं आज, तो वो बच्चे ई सिगरेट और इसी तरह से दूसरे टैबलेट्स है और विक्स है, थिनर है, इस तरह की सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ रहा है, ये जो मामला है वो आगे बढ़ रहा है। तो तालीम पर तो हमारी तवज्जो है बेशक, लेकिन हमने देखा है कि पूरा घर परेशान हो जाता है अगर कोई बच्चा इस तरह से कोई एक घर का एक फ़र्द भी अगर इस तरह से नशे की हालत में या नशे के मामले में पड़ जाता है तो पूरा घर उसके पीछे परेशान हो जाता है। तो इस तरफ मैं चाहता हूं कि आप तवज्जो ज़रूर से दें, और अपने इलाक़ों में जैसे भाई ने बताया है कि हाँ, तो इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। थोड़ी सी तवज्जो करो, 2 बातों को हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। एक नशे के ख़िलाफ़ मुहिम, और दूसरे नौजवान बच्चियों की नहीं बच्चियों की तरबियत का सिस्टम इलाका वाइज। हमारे यहाँ तकरीबन मुमरा में हम लोग 1 साल से बच्चियों के मस्तूरात के इज्तिमात रख रहे हैं। उलमा किराम के बयानात होते हैं मस्जिदों में 2 घंटे के हर हफ्ते या 2 हफ्ते में जैसा मौका मिलता है। तो इसको भी हर इलाके में शुरू करें, क्योंकि जहनी दीनी तरबियत नहीं है, फ़िक्री इर्तिदाद का शिकार है नौजवान तबका। इसी वजह से आसानी से गैर मुस्लिमों के साथ में ऐड हो जाती हैं, शादियाँ हो रही, फला हो रही। ये फ़िक्री इर्तिदाद को ख़त्म करने के लिए
اس کے بعد میں جو شادیاں ہو رہی ہیں شیخ، دوسری ایک چیز تربیت میں یہ ہے کہ جو شادیاں ہو رہی ہیں نوجوان بچے بچیوں کے 2 مہینے پہ 6 مہینے میں طلاق کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو میرج کاؤنسلنگ سینٹرز بننے چاہیے، میرج کاؤنسلنگ سینٹر بننا چاہیے۔ 3 باتیں مجھے ایڈ کرنی تھی، نشہ، بچیوں کی تربیت اور شادی شدہ جو نوجوان طبقات ہیں ان کے لیے کاؤنسلنگ کا کہ شادی کے حقوق کیا ہیں، کس طریقے سے اس کو نبھایا جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، مغرب کی نماز میں نے یہاں پڑھی ہے، میرا بھائندر ویرار سے بھی تشریف لائے ہیں یہاں لوگ، تقریباً پورے بمبئی سے یہاں سبربن سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور وقت زیادہ ہو گیا ہے اور تقریباً جتنی بھی مفید باتیں ہیں وہ سب آ چکی ہیں۔ مستقیم مکی صاحب، ہر پہلو پر تقریباً گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ۔ ہمارے راشد عظیم صاحب ہی نے اپنی نظامت میں تقریباً سب باتیں کہہ دی تھی، بوجھ ہلکا کر دیا تھا، اس لیے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 2 دور ہے، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ دونوں دور کے جو احکامات ہیں وہ سب قرآن و حدیث میں موجود ہے، حرف بحرف، اور قرآن نے خود کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس اسوہ حسنہ کو جاننے والے علماء کرام ہیں۔ اسکول کالجز میں ممکن ہے کہ کسی نے 2 سبجیکٹ میں کمال حاصل کیا ہو یا کسی نے 3 سبجیکٹ میں حاصل کیا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف نہیں رہتی۔ اب مثلا ہماری فرحانہ آپا ہیں، قوانین کے جتنے شق ہو سکتے ہیں، قوانین کی جتنی تشریحات ہو سکتی ہیں، توضیحات ہو سکتی ہیں، سب پر ان کی نگاہ ہے۔ وہ قوانین جس کو منضبط کیا اقوام عالم نے، لیکن ان قوانین کے علاوہ ایک مستقل قانون ہے جس کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے اور سنت رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک صاحب ایمان کے لیے اس دنیا میں بھی فلاح اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ معاف کیجئے گا، قبر میں ہمارے ابا بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے، تو جب ہمارے ابو جان کام نہیں آئیں گے تو اگر کسی سیاسی پارٹی سے ہماری وابستگی ہے یا فلاں سے وابستگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی نہیں ہوئی، قرآن سے وابستگی نہیں ہوئی، تو قبر میں وہ کوئی وابستگی کام نہیں آئے گی۔ تو آل انڈیا ملی کونسل کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے وطن کے قانون کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسانی فلاح و بہبودی کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ سب کرنی ہے، اس لیے کہ یہ امت پورے انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں۔ ٹاڈا پوٹا میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم زد میں نہیں آئے تھے، ایک غیر مسلم بھی زد میں آئے تھے، لیکن اللہ پاک نے یہ توفیق دیا مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب کو کہ انہوں نے اس کے لیے تحریک چھیڑی۔ ایک صاحب ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں، وہ بھی جیل میں تھے یہاں، تو مولانا مجیب اللہ ندوی صاحب ایک بڑے عالم تھے اعظم گڑھ کے، وہ تشریف لائے تو اعظم گڑھ کے وہ بزرگ تھے، اب مرحوم ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی میرا بیٹا جیل میں ہے، کچھ کیجئے، وہ بھی ٹاڈا ہی کے تحت تھے وہ صاحب۔ تو ان کے والد نے اپنی ٹوپی حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب کے پاؤں پہ رکھ دیا کہ قاضی صاحب کچھ کیجئے، ہمارے خاندان کا یہی آدمی ہے۔ ایک قاضی صاحب، ابھی اس لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ دونوں گزر گئے، بلکہ تینوں، قاضی صاحب بھی گزر گئے، وہ ٹوپی رکھنے والے بھی گزر گئے، چیف جسٹس احمدی صاحب بھی گزر گئے۔ احمدی صاحب بوہرا سماج سے ان کا تعلق تھا، لیکن قاضی صاحب سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور اسلامی قوانین کے معاملے میں وہ قاضی صاحب سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ تو قاضی صاحب کو جب اطمینان ہو گیا تو قاضی صاحب نے چیف جسٹس احمدی کی ذہن سازی کی کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، چونکہ آل انڈیا ملی کونسل کا ایک منشور جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر آپس میں تعلق ہے۔ ظاہر بوہری بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں، اور ہندوستان کے جو حالات ہیں ان حالات میں اسی کو ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ ہم کلمہ طیبہ کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
अब वो दौर चला गया जो बिरादराना वाद या मसलकी वाद खेला करते थे, इसलिए कि 92 में सब लोगों ने देख लिया है, 92 में मैं भी यहाँ था, कि यहाँ पूछा नहीं गया कि तुम सुन्नी हो, तुम देवबंदी हो, तुम अहले हदीस हो, तुम जमात इस्लामी से हो, तुम फलाने से हो, ये नहीं पूछा गया था। बस सिर्फ ये अल्लाह का नाम ले रहा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है। तो बहरहाल ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जहाँ बहुत सारे हुसूलियाबी हैं मुल्की कवानीन के तहत, उनमें वो सब ज़र्री हैं और वो सब तारीख़ में रकम है। जैसे हमारी फरहाना आपा ने कहा, मुझे याद है तमिलनाडु बैतुल हुज्जाज में मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब तशरीफ़ लाए, मौलाना असरारुल हक साहब कासमी थे, मुफ्ती अशरफ अली साहब कर्नाटक के अमीर शरीयत थे, और मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी साहब थे, भटकल के एक साहब थे। और वहाँ महाराष्ट्र की तश्कील अमल में आई थी, लिखने वाला मैं था, उसमें अब्दुल सत्तार यूसुफ शेख साहब थे, सबसे मोहतरम बुजुर्ग सरपरस्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी फाउंडर मेंबर थे वो, और सेक्रेटरी भी थे। शहाबुद्दीन शेख जोड़े गए उसमें, वाहिद अली खान मरहूम जोड़े गए, हारून भाई मोजा वाले जोड़े गए उसमें, ये सारे लोग थे। और शालीमार के ऊपर इसकी बहुत शानदार ऑफिस भी थी ऑल इंडिया मिली काउंसिल की, उसका इफ्तिताह भी कादी साहब ने किया था उस ज़माने में। तो बहरहाल वो सब हमारे असलाफ थे, गुजर गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमावे। बुनियादी तौर पर हमें अपने बुज़ुर्गों से सीखना है, उलमा से जुड़ के रहना है, और उलमा की रहनुमाई में हमको अपनी ज़िंदगी की शाहराह को तय करना है। जैसे अभी राशिद भाई ने ये बात कही, मिली काउंसिल का हदफ यही है कि हम छोटों की हौसला अफजाई करें, काम को छोटों में मुंतकिल करें, छोटों को सिखावें, इसलिए कि जाहिर है कि हमको चला जाना है, दुनिया ही से चला जाना है। ओहदा तो एक आर्जी चीज़ है, दुनिया भी आर्जी चीज़ है, हम लोग भी आर्जी तौर पर हैं। तो अगर हम काम मुंतकिल नहीं करेंगे, काम सिखाएंगे नहीं, तो जाहिर है कि काम आगे कौन करेगा। तो कादी साहब फरमाते थे कि दूसरी लाइन हमेशा तैयार रखो, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो तो फ़ौरन दूसरी सेकंड लाइन जो है वो उस काम को संभाल ले। तो हम सब लोग इसी जज्बे के तहत ऑल इंडिया मिली काउंसिल से जुड़े हैं। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि हमने फ़िलहाल इस वक्त, चूँकि कारगुजार नायब सदर हूँ मैं और कारगुजार सदर भी हूँ, महाराष्ट्र की बॉडी तश्कील होनी है, उसके लिए भी हमने एक बहुत अच्छे सालेह जय्यद आलिम दीन का इंतखाब किया है। महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी की भी ज़रूरत है। अजीब इत्तफाक है कि हमारे मक्की साहब भी यही कह रहे थे कि भाई आलिम दीन की रहनुमाई में ही काम करना है। तो हमने एक जय्यद आलिम को अभी जहन में रखा है, चूँकि मिली काउंसिल का मिजाज चूँकि जानता हूँ, शुरू से इससे जुड़ा हुआ हूँ। ये और बात है कि ज़बरदस्ती मुझको ये घसीट के ले आए राशिद भाई, और ज़रूरी नहीं है कि आदमी ओहदे पर रह के काम करे, हम लोग तो काम करते ही हैं, शुरू से ही कर रहे हैं काम, शुरू से काम कर रहे हैं। आपको बताऊं कि हज़रत मौलाना राबे साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कई दफ़ा कहा कि भाई ऐसा है तुम बोर्ड के मेंबर बन जाओ, मैं तुम्हें कहता हूं। मैंने कहा हजरत आफियत इसी में है कि मैं अलग से हूं, और हज़रत मुफ्ती साहब भी जानते हैं 4 मरतबा हमारी दावत पर हज़रत मौलाना राबे साहब तशरीफ़ लाए यहाँ। हमारे मुसाबके की ऑल इंडिया हाफिज़ कुरान बच्चों का कंपटीशन होता है 27 साल से हमारा, 4 दफ़ा वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने सदारत की। तो सदारत या ओहदे का हासिल होना कोई चीज़ नहीं है, असल है काम। अब देखिए ये क्या, ये काम कर रहे हैं ना एडवोकेट साहब, अब्दुल बासित साहब काम कर रहे हैं ना, राशिद भाई काम कर रहे हैं, मक्की साहब काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में थे वहाँ काम कर रहे थे, अब यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे सैयद साहब हैं, देखिए काम कर रहे हैं, कोई लाहिका नहीं है कि फ़लाँ तंजीम के सदर हैं, ये हैं वो हैं, रात दिन एक फ़िक्र है। तो हम सब लोगों को इसी नहज पर काम करने की ज़रूरत है। और हज़रत मुफ्ती साहब ने जो फरमाया था फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, के मुसलमानों का रिश्ता इस तौर पर है ऐसा, इस रिश्ते को कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, के सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हम मुत्तहिद हो जाएं। तो इंशाअल्लाह हमारे दरमियान फरहाना आपा जैसी बहुत ही मुदब्बिरा खातून है, राशिद अजीम साहब जैसे बहुत ही जो है बाबसीरत आदमी हैं, ये सारे हजरात हैं। और सही बात यह है कि ये जो हलचल है मिली काउंसिल की, वो राशिद अजीम साहब के सर जाता है, इसका अजर उनको मिलेगा। एक अहम बात यह है कि 12, 13, 14 जनवरी को इंशाअल्लाह रहमान मरकज़ी बॉडी ने अपना आमला का इजलास और सालाना इजलास बम्बई में तय किया है। इत्तफाक ये है कि हज़रत कादी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद मिली काउंसिल का इजलास यहाँ नहीं हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 2 इजलास हो चुके हैं, फ़िक़्ह एकेडमी के भी 2 इजलास हो चुके हैं, जो हमारे हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में हुआ है, उसमें मौलाना अब्दुल बासित साहब का भी बहुत अहम रोल था। तो इंशाअल्लाह ये 12, 13, 14 जनवरी को जो इजलास होगा उसकी भी मुकम्मल सरपरस्ती हज़रत मुफ्ती साहब फरमाएंगे। लेकिन हम सब लोगों की
हम सब लोगों की शमूलियत उसमें ज़रूरी होगी, इसलिए कि तकरीबन 200 लोग आएंगे पूरे हिंदुस्तान से, जो अरकान आमला होंगे, कुछ मदूवीन खुसूसी होंगे, उनके क़याम का भी इंतज़ाम करना है, उनके ताम का भी इंतज़ाम करना है। उसमें बाद ऐसे मुख्तदर हजरात होंगे कि उनको कुछ ट्रैवलिंग के नाम पे हदिया भी पेश करना है। तो बम्बई शहर मेज़बानी के लिए बहुत मशहूर है, हर नौ की मेज़बानी, स्कूल लाइन से, कॉलेज लाइन से, मदरसे के लाइन से, हैं, हर लाइन से। तो इसलिए हमको अपना जहन तैयार रखना है इस वक्त से, और इंशाल्लाह उस सिलसिले में भी एक मीटिंग, हमारे राशिद साहब अभी किसी ज़रूरी काम से देवबंद जा रहे हैं, ये 10 रोज़ के बाद वापस लौटेंगे, तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम एक मरतबा फिर आप हजरात को ज़हमत देंगे। और ये आप सुन ही चुके हैं कि भाई अल्लाह का हुक्म है, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि तुम तकवा और नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो। हम सब लोगों का मिजाज होना चाहिए खर्च करने का। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुबह सुबह एक फरिश्ता कहता है कि ए अल्लाह, जो खर्च करता है उसको दुगना कर दीजिए, बरकत दीजिए, जो सखी है उसकी सखावत में, माल में बरकत दीजिए। एक फरिश्ता कहता है अल्लाह, जो बखील है क्या कीजिए, अपोजिट्स, हाँ, ख़त्म कर दीजिए। तो बखल पसंद नहीं है। हमारी 100 रुपए की सलाहियत है, सीधी बात, 100 रुपए अगर हम अपनी ज़ात से दे सकते हैं तो सबसे पहले हमको 100 रुपए देना चाहिए। सहाबा किराम ने यही किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ इसी पर है कि आपके पास नहीं है लेकिन आप कर्जा लेकर के मदद कर रहे हैं। कोई कर्जा देने वाला नहीं है, उनके जानने वालों में तो मस्जिद में ऐलान कर रहे हैं कि भाई फला आदमी है, उसकी ज़रूरत है, कौन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा हासिल करना चाहता है, उसकी मदद करना चाहता है। तो ये हमारे पास एक उसूल है, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह, और उसी के मुताबिक ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल अल्हम्दुलिल्लाह 1992 से काम कर रही है। जो लोग गुजर चुके हैं हम उन सब के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, और अभी बिलखुसूस फ़लस्तीन जिसके लिए हज़रत ने भी दुआ किया, और हम लोगों ने बाज़ाब्ते राशिद अजीम साहब की सरपरस्ती में उसके लिए मीटिंग हुई मीनारा मस्जिद में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। तो हम लोग इस मामले में हसास हैं और हर मुसलमान हसास है। यहाँ का जो गैर मुस्लिम मुनसिफ तबका है, जिसके जहन में कदूरत नहीं है, असबियत नहीं है, वो भी फ़लस्तीन से हमदर्दी रखता है, चूँकि इंसान का दिल है। तो इसलिए हम सब लोग आज के इस मीटिंग में फ़लस्तीन से भी इजहार यकजहती करते हैं। जो लोग फ़लस्तीन जिनकी सरजमीन है उसके लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी हम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, उनके हुजूर में भी सलाम पेश करते हैं, और अल्लाह से उनके लिए भी सलामती और हिफ्ज़ व अमान की दुआ तलब करते हैं। अल्लाह पाक हमारे इन कलिमात को कबूल फरमाए, और हम सब लोगों के दिलों में जो रोग है, निफाक है या नफ़रत है, अल्लाह उन सब को दूर फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं उसी तरह इशाद साहब का भी, इशाद अहमद साहब है, हमारे सुलेमान सूरिया है, अहमद कादरी है, या हम, और हमारे राशिद मंसूरी साहब हैं, इनको भी मिली कौंसिल में माशाल्लाह आई गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी लोगों का, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले इजलास में ही नहीं, जब भी मिली कौंसिल का कोई भी धरना, मोर्चा हो, आंदोलन हो, या मीटिंग हो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें हमेशा आप मौजूद रहेंगे, आपकी ताकत हमारे साथ रहेगी। साहब की मोहब्बत को कबूल करता हूँ, लेकिन उन्होंने इम्तिहान में डाल दिया मुझे। ये सब जो है यहाँ पर गुलों के कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा, हम सब की तरफ से आपको, ठीक है, ज़रूर शरीफ पढ़ना सब लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। अल्लाह इस मजलिस को बेहद कामयाब फरमा, इस बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह सब के सब सिर्फ़ मुसलमानों और मिल्लत की फ़िक्र में बैठे थे। अल्लाह इस बैठने को बेहद बाइस खैर व बाइस शरफ़ कबूलियत बना दे। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद पैदा फरमा, खुसूसन हिंदुस्तानी मुसलमानों में इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद पैदा फरमा। अल्लाह हम सब में जोड़ और मोहब्बत पैदा फरमा, नफ़रत और दूरी के तमाम असबाब दूर फरमा दे। अल्लाह इस वक्त हमारे सर पे सबसे बड़ी मुश्किल फ़लस्तीन का मसला है। अल्लाह अपनी रहमत से उसे हल फरमा दे। अल्लाह फ़लस्तीनियों को कामयाबी नसीब फरमा, उन्हें नजात अता फरमा, और ज़ालिम इसराइलियों से उन्हें 100% नजात और छुटकारा दे दे। अल्लाह हमारे दो भाइयों को गज़ा के परेशान हाल मुसीबत ज़दाओं को मदद फरमा और उनके लिए नुसरत फरमा।
उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद फरमा, वहाँ क़ुर्ब जवार के इस्लामी ममालिक को मुत्तहद फरमा, उन्हें उनकी मदद की तौफ़ीक मरहमत फरमा। अल्लाह हमसे भी जो कुछ मुमकिन हो हमसे काम ले ले। अल्लाह हमारी दुआओं में असर पैदा फरमा, हमारे तमाम जायज़ मक़ासद को कामयाब फरमा, दुनिया और आखिरत में हर जगह इज़्ज़त और रफ़ात नसीब फरमा, ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला नबील करीम। फिरोज़ खान, बहुत माशाल्लाह मोहब्बत है उनकी, और हमारे साबिर भाई भी आके गए थे। और इस मीटिंग में मैं ख़ास तौर से शहाबुद्दीन सिद्दीकी और शाहीन पटेल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो कवर भी कर रहे हैं और मिली कौंसिल के जिम्मेदार भी ये लोग दोनों, शाहीन पटेल और शहाबुद्दीन सिद्दीकी, कारी शहाबुद्दीन सिद्दीकी। उनका भी अपना चैनल है शाप टीवी और ये आमना सामना मीडिया। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का। अल्लाह हाफिज़।